A very good evening to everyone. Thank you once again for joining us. So, may I request all our participants, it is comfortable for them, they can start their camera. They all are muted so that we don't have any interruption. So, myself, Dr. Sudhi Agrawal Kamboj, I am your host. And today I welcome you all for yet another session of Brandos. Friends, those who are new to Brandos is the Breast and Endocrine Society of Western Uttar Pradesh, where on a monthly basis we have an online meeting. And these meetings are very characteristic in its own sense because we cover both endocrine and breast related issues. So we have a specific pro forma where on every even months we conduct breast meets, on every odd months we conduct endo meets. Friends, January being an odd month, this time we have an endocrine meet, and this year we have started with a very important topic, very pertinent to all the endocrinologists or endocrine surgeons because this problem we see in a day-to-day practice. So before we go on further, there are few other important introduction that I would like to give you regarding Brandos. So it is a multidisciplinary program. In this program, we have all the clinicians who have special interest in breast and endocrinology. Brandos provides them a platform where we can interact with each other and discuss about the, the issues that we see into our clinical practice on a day-to-day basis. So we have surgeons, we have physicians, we have endocrinologists, we have endocrine surgeons. Not only that, we have a close interaction with the pathologists, radiologists, nuclear medicine physicians, or any other specialty who deals with the breast and endocrine related problems. So this forum provides them a platform where we can discuss about these problems. And why? Because we want to upgrade our clinical skill, which is very much required if you really want to enjoy your clinical practice. So not wasting much time, I request you all welcome guest faculty, Dr. Deepen Narayan Singh, who is with us, and moderator. Our moderator is Dr. Shivendu Bhardwaj. He is an alumni from Department of Endocrinology at SGPGI Lucknow. Right now, he is busy. He may join us a bit late, but we will now start our program. And for this, I would first like to thanks Dr. Deepen Narayan Singh is a very famous surgeon. He is an endocrine surgeon, a pass out from SGPGI Lucknow. He did his MCH there. And before that, he did his graduation from Gorakhpur Medical College. Later on, from the prestigious King George's Medical University, he completed his master's in surgery. Later on, he became super skilled in thyroid surgeries, in endocrine surgery. He's my good friend. Thank you very much, Deepen, for joining. And I'm so humbled and so pleased that you are with us today because I know your caliber as a surgeon and the amount of thyroid surgeries, the extent of thyroid surgeries that you perform. Right now, he is a professor in ANMC Medical College, Gonda, and he's also a very renowned private practitioner there. So thank you very much, Deepen, for joining us. And I'm pretty sure and I'm excited about this today's program because while preparing for this program, I learned a lot. Though I knew about all these details, but I knew about these details when I learned about these details when I was a trainee. I looked to those details as a trainee, but now as a clinician, as a surgeon, an independent practitioner, when I looked back to those details, it almost changed my whole perspective. And this is something what I want to share with you today. Okay. So I thank you, Chani, for being always with me, even on very small, like very short notices. You helped me a lot. And today, my co-speaker is Dr. Chani. She is a very renowned pathologist, a pass out from SGPJMS. So she has a huge exposure of endocrine related pathogen. Today, she is going to help us in understanding about multinodular goiter. So friends, why we chose multinodular goiters? You know, endocrine surgery or endocrinology is something which is based on thyroid because thyroid is the most common pathology that we see into our daily day-to-day practice. So
apparently it looks very simple कि okay thyroid है गले में गेंगा है what is this just remove it, but it's not like this. What makes us different from others is that we manage the patient with understanding. So it is very important that we must know about these pathologies so that next time when the same patient come to us, we are more intelligent in dealing with such patients with more understanding. Friends, now I'm sharing my screen. Okay. So, and I hope it is visible to you. So before I start the program, I request everyone, friends, all of you are muted as a protocol now, because these meetings are strictly for the doctors. I request or any of your friend who is finding difficulty in joining our meeting, I request please ask them to put their designation as a doctor so that we can avoid any unwanted disturbances. As a doctor, we all know the discipline. So please mute yourself until unless we really want, we unmute you. If you have any concern, please write it in the chat box. And I encourage you to please write your points, that any point you want to clarify from the experts. Write this into the chat box while we are presenting any point you feel controversial, you feel doubt about it. Please write it in the chat box. And we encourage this so that we can have an extensive discussion, because discussion improves our learning potential. So please feel free to write anything in the chat box which can help you as a clinician, because you may feel that your question may be innocuous, but it may be helpful to many others. So please don't feel shy. This is your program. Write in the chat box any question you want to discuss in this program. Fine. In case this meeting is disturbed in between or you accidentally log out from this meeting, please click on the same link. But please make sure that you put right doctor in front of you so that our team can provide you the access. Okay. So is my screen visible to all? So friends, जैसा कि अभी हमने बात की, and friends, this meeting will be in mixed Hindi English. So please don't feel shy if you feel hesitate in asking question or something. What our effort is to make it more interactive. Okay. So this story, we start with a story of this old gentleman who presented to us with a goiter, this massive goiter for past 60 years. This old man himself, he was around 75 to 80 years of age. And for past 60 years, he was carrying this huge multinodular goiter. This nodular goiter was not that huge when he was young. It was not that huge when he was young, but gradually it progressed. So because it was symptomless, except that unke gale mein there was a he was symptomless, except that it was a non-compressive goiter, it was a euthyroid goiter. So the patient did not bother much about this goiter. And this is a common story which we all might have seen in our clinical practice, especially the surgeons. But then why he came to us? Because for past few months, he experienced that he had some sudden enlargement in the size of the goiter, and there was some respiratory distress, as well as he was finding difficulty in deglutition. So it was more for the solids than for the liquids. So it was more of an organic compression that he was facing. So what we did, we examined the patient, we rule out certain things, which I will tell you in detail later on. कि हमने क्या-क्या rule out किया, कैसे किया. This was the intraoperative image. This is just to show how this recurrent laryngeal nerve looks like in its close proximity with the thyroid. This was the thyroid gland, and these are the parathyroid glands that we saved in this case. The post-operative period was absolutely uneventful. This is the gross that we removed from it. It weighted around 150 to 200 grams. The normal weight of a thyroid gland is around and 15 to 20 grams, and it was around 150 to 200 grams, like around 10 to 20 times it was raised. It was enlarged. Now I request our friend Dr. Chani to explain the gross pathological images to us. Thank you, ma'am. Huh. Yes, ma'am, now I can. Yeah. So on gross examination, the specimen weighed 292 grams. And the right lobe measured 9 by 7 by 5.5 centimeters, left lobe 11 into 6 into 5, and isthmus 4 into 3 into 2 centimeters. Cut surface showed multiple colloid filled nodules. Here is a representative image for us to see.
cut surface of a nodular goiter, we can see multiple variable sized nodules. And around the nodules, we can see a white rim, which denotes the fibrosis. And the dark brown areas are areas of hemorrhage and calcification. So all this was seen on gross examination. Microscopy revealed multiple nodules enclosing follicles of varying size, lined by follicular cells and filled with colloid. And cystic degeneration was also seen. So if we see the photomicrographs below, we can see the follicles are of variable size, from very small to medium size to large follicles are there, and they are all filled with this pinkish material, which is the colloid. And the large, sometimes these fuse together and form colloid cyst or colloid lakes, as we can see in this photomicrograph. The second one also is showing large follicles and which are filled with colloid. Okay, friends, so before we proceed further, I just want to have a deeper look into this photographs, जिसमें कि आपको दिखाई देगा there are solid cystic areas with hemorrhages and calcification. Because we are going to discuss about this in detail later कि ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और इनका significance क्या होता है. Okay, so अब the question आता है कि इतना simple topic, why we took this topic into this forum. The reason why we discuss this case here, because we just wanted to refresh the normal anatomy and physiology of thyroid gland जो हमने पढ़ा होगा while we were under training. So now we'll have a second look into the same anatomy and physiology, a brief look, so that we can have a better understanding as a clinician. Secondly, why we discuss this case? To understand the causes and pathophysiology of sporadic non-endemic goiters. Because since career, teaching or learning as an MBBS student, then MS or MD, हमने हमेशा जो goiter का रिलेशन पढ़ा है, दैट इज विद द एंडेमिक गोइटर्स, कि आयोडीन कमी होती है तो एंडेमिक गोइटर्स होती है. बट डिड वी एवर थिंक अबाउट कि जहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है, या फिर आज की डेट में जहाँ पे आयोडीन सप्लीमेंटेशन इतना वाइड स्प्रेड है, स्टिल वी गेट द गोइटर्स, दैट टू बिग गोइटर्स. सो व्हाट आर द वेरियस अदर रीजंस which lead to this type of pathophysiology? Why still we see huge goiters in today's era? So we wanted to understand the causes and pathophysiology of sporadic non-endemic goiters along with endemic goiters. इसके अलावा हम समझना चाहते हैं to understand the nature and course of goiters. Suppose they are not operating, so there are instances where you may get the references patient को, like in our current case, patient remained unoperated for past 60 years. So he was carrying the goiter for past 60 years. He might have went to some doctors about कि क्या करना है. And we see the patient जहाँ उनको बताया जाता है कि okay, because it is a benign goiter, there is nothing to worry about. तो हम इस presentation के माध्यम से we'll try to explore कि what happens, what is the natural course of goiters अगर हम उनको सिर्फ observation पे रखते हैं. And then to find out the best strategy for the treatment. Because there are various treatment strategies. Some of the treatment strategies are still evolving. लेकिन जो standard treatment है, उसमें से कौन सा ट्रीटमेंट किस तरह के गोइटर में बेस्ट रहेगा, ये हम आज के प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे. फाइन. तो फ्रेंड्स, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. कहने की बात नहीं, जो भी सर्जन होंगे, वी ऑल नो, वी ऑल माइट हैव सीन दिस पिक्चर सो मेनी टाइम्स. लेकिन एक मैं बता देती हूँ, व्हाट इज दिस थायराइड. थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक सराउंडिंग द ट्रैकियल सरफेस होता है. सो इट इज अ बटरफ्लाई लाइक. सो इट हैज टू लोब्स, राइट एंड द लेफ्ट लोब, व्हिच इज कनेक्टेड टू ईच अदर विद द स्थिमस. सो इट इज आल्सो कॉल्ड शील्ड, बिकॉज क्या होता है, ये ट्रैकिया को शील्ड करता है. जैसे शील्ड होती है, सैनिक लोग पहनते थे, कुछ इसी तरह से ये शील्ड की तरह ट्रैकिया को कवर करता है, इसीलिए इसको थायराइड बोला गया है. सो इट इज जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम C1 से लेके C4 C5 ट्रैकियल रिंग्स तक ये एक्सटेंड करता है. 4 to 5th ट्रैकियल रिंग तक एक्सटेंड करता है. इट इज वेरी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, और इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. इसकी आर्टरीज आती हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी. फिर इसका वीनस ड्रेनेज होता है सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर थायराइड वेन्स के थ्रू. वी मे नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस एनाटॉमी. जब हम इसकी सर्जरी के बारे में कभी किसी और फोरम में डिस्कस करेंगे, then I will tell you in detail about this. अभी just a brief overview. So now अगर हम, और ये एक encapsulated structure है, अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी पे जाए
तो जैसे डॉक्टर चानी ने दिखाया, हमको कुछ इस तरह के फॉलिकल्स मिलेंगे। तो क्या होते हैं, दीज आर द सिस्टिक लीजन्स, सिस्टिक एरियाज होते हैं which are lined by thyroid follicular cells. So these cells are cuboidal in nature when they are in non-secretory phase. और जब ये सिक्रेटरी फेज में आते हैं तो ये कॉलमनर हो जाते हैं सिक्रीशन की वजह से, मतलब हाइपरप्लास्टिक और हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं। इनके बीच में ये कोलॉइड होता है, इसकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगी। यूजली ये वेरिएबल साइजेस होते हैं, बट मोर और लेस दे आर ऑफ सेम साइज, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कंपेयर टू अगर हम मल्टीनोडुलर गॉइटर से कंपेयर करेंगे तो। और इसमें सराउंडिंग स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा में सी सेल्स भी होती है। सी सेल्स करती है कैल्सिटोनिन को रिलीज। तो कैल्सिटोनिन के बारे में जब हम मेडुलरी थायराइड कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे या बोन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हम उस वक्त इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी फिजियोलॉजी पर आते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आई एम श्योर ज्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो क्या होता है फ्रेंड्स, वी ऑल नो दीस आर द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। इन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में देयर आर टीएसएच रिसेप्टर्स जो कि होते हैं स्ट्रोमल साइड में। ओके, सो दिस इज द सिस्टिक पार्ट जो अंदर सिस्टिक कैविटी है, एंड दिस इज द स्ट्रोमल पार्ट। अब स्ट्रोमल पार्ट में टीएसएच रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लड के थ्रू टीएसएच आएगा, आकर इन टीएसएच रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा। अब जब ये बाइंड करता है, ये जी अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, और ये दो तरीके के कैस्केड्स को इनिशिएट करते हैं, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम रिसेप्टर्स। ओके, जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट यू बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनना। रीजन इसका ये है कि जब हम इस मल्टीनोडुलर गॉइटर की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो ये सारा मैकेनिज्म वहां पे सब रिपीट होगा। तो एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे का सारा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर्स हो जाएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सोडियम को भी अंदर करेंगे, आयोडीन को भी। आयोडीन होता है आयोडीनेटेड फॉर्म में, मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में। जैसे ही वो अंदर आता है, ये कोलॉइड में आ जाता है। कोलॉइड में आके वहां पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इस नेगेटिवली चार्ज आयन को आयोडीनेट कर देता है, दो आयन्स को आपस में जोड़ के आयोडीन बना देता है। ये करता है थायराइड पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में। सो फ्रेंड्स, जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंटी T2 एंटीबॉडीज हम रूटीनली कराते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम थायरोडाइटिस के लिए एक सेपरेट फोरम करेंगे। तो अभी बस आप ये समझ लीजिए कि थायरोपेरोक्सीडेज यहाँ काम आता है, जो कि जो निगेटिवली चार्ज आयोडीन होता है उसको आयोडीनेट कर देता है। अब ये जो आयोडीनेटेड है, ये जो आयोडीनेशन हुआ है, ये हो जाएगा ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन होगा थायरोग्लोबुलिन के साथ। तो थोड़ा सा थायरोग्लोबुलिन के बारे में मैं बताती हूँ। थायरोग्लोबुलिन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी पैकिंग होगी गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस से ये आ जाएगा कोलॉइड में। ये इटसेल्फ यही कोलॉइड बनाता है, ये बहुत अबंडेंस होता है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन में टायरोसिन करके अमाइनो एसिड अटैच होता है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव अमाइनो एसिड्स, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। अब ये टायरोसिन अमाइनो एसिड्स, टायरोसिन होता है, ये इसकी एफिनिटी होती है आयोडीन के लिए। तो इसमें जो आयोडीन है अलग अलग प्रपोर्शन में ऐड हो जाता है। जैसे अगर सिर्फ किसी टायरोसिन पे सिर्फ एक अमाइनो एसिड लगा तो वो बन जाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन, इसको हम कंजुगेशन भी कहते हैं। अगर उसमें दो आयोडीन लग गए तो बन जाएगा डाई आयोडो टायरोसिन। अगर एक मोनो और एक डाई वाला आयोडो टायरोसिन जुड़ गया तो बन जाएगा ट्राई आयोडो टायरोसिन। और अगर दो डाई वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे टेट्रा आयोडो टायरोसिन, जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो ये इस फॉर्म में इसमें पड़े रहते हैं अनटिल अनलेस दे आर स्टिमुलेटेड, कि अब आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है, नाउ यू हैव टू गो, तो अब आपको फाइट करने के लिए उसमें जाना है, लड़ाई के मैदान में जाना है। तो क्या होता है, दे आर कॉल्ड फॉर एक्शन। तो इसमें पिनोसाइटोसिस होती है। ये जो कोलॉइड होता है, ये कोलॉइड से थायरोग्लोबुलिन, जो कंजुगेटेड थायरोग्लोबुलिन है, दे आर टेकन अप बाय द फॉलिकुलर सेल्स। अंदर जाके वो एक वेसिकल के फॉर्म में जाएगा, जिसके ऊपर लाइसोसोमल अटैक्स होंगे। लाइसोसोम क्या करेगा, इसको डीफ्रेगमेंट कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा, और जो ट्राई आयोडोटायरोसिन है और जो टेट्रा आयोडोटायरोसिन है, जिसे आम भाषा में हम T3 और T4 कहते हैं, उसको रिलीज कर देगा सर्कुलेशन में। जैसे ही ये थायराइड की स्ट्रोमा से बाहर निकलेंगे, ये अकेले नहीं जाएंगे, ये राजा रानी की तरह होते हैं। दे आर अकम्पनीड बाय लार्ज प्रोटीन्स।
दीज आर मैमेलियन स्पेसिफिक टीबीजी, थायरोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और एल्बुमिन और ट्रांसथायरेटिन। तो ये 3 तरीके के लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ ये बाइंड कर लेते हैं, और इसके साथ मजे में ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, पूरी बॉडी में घूमते हैं, जहां जहां इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सपोज यूट्रस को रिक्वायरमेंट है, ओवरीज को अपने डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, मसल को रिक्वायरमेंट, वहां पर ये रिलीज होते हैं, यहाँ पर वो अपना एक्शन देते हैं, जिसमें T3 इज द एक्टिव फॉर्म, T4 इज द सर्कुलेटिंग फॉर्म। तो पेरीफेरी में T4 कन्वर्ट हो जाएगा T3 में, और T3 अपना एक्शन देगा। तो दिस इज हाउ फिनोमेना वर्क्स। अब हम आते, आई होप अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि थायराइड में प्रोसेस क्या चलता है। अब हम आते हैं थायराइड TSH के बारे में थोड़ा समझते हैं। ओके, अब जब TSH होता है, ये ब्लड है, ब्लड से जब ये आएगा तो इसके 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम जी अल्फा रिसेप्टर्स कहते हैं। तो उसके आउटर सरफेस पे TSH अटैच होगा। जैसे ही अटैच होता है, वैसे ही कैस्केड ऑफ रिएक्शन, जो मैंने बताया था, 2 रिएक्शन इनिशिएट होती है। एक तो होती है साइक्लिक AMP, और दूसरी होती है IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स। तो ये कैस्केड इनिशिएट होते हैं। अब साइक्लिक AMP के इंक्रीज होने की वजह से ये फॉलोइंग चीज करता है, क्या करेगा, एक तो सोडियम आयोडीन सिंपोटर्स को स्टिमुलेट कर देगा, वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन पंप करना शुरू कर देगा थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। इसके अलावा ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा थायरोग्लोबुलिन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा जो थायरोग्लोबुलिन है उसका कंजुगेशन बढ़ा देगा आयोडीन के साथ, इससे ज्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा। उस थायराइड हार्मोन का रिलीज बढ़ा देगा सर्कुलेशन में, क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कोलॉइड में, तो कहाँ जाएगा, वो वापस से रिलीज करना शुरू कर देगा, वो सर्कुलेशन में जाएगा। साथ ही साथ ये प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रोथ करते हैं एंड डिफ्रेंसिएशन करते हैं थायरोसाइट्स। थायरोसाइट्स मतलब थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, उनको हम थायरोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये सारे काम साइक्लिक AMP के थ्रू होते हैं। दूसरे IP कैल्शियम के थ्रू आयोडीन का ऑर्गेनिफिकेशन होता है। ऑर्गेनिफिकेशन है कि नेगेटिवली चार्ज आयोडीन दे आर बाउंडेड टुगेदर टू फॉर्म आयोडीन I2। दिस इज ये जो H2O2 के प्रेजेंस में होता है, वो चीज हमारा दूसरा पाथवे करता है। बट एनी हाउ सारे पाथवे मिलके ये सारा काम करते हैं। अब थायराइड की जो निगेटिव फीडबैक फिजियोलॉजी है, इससे हम सब बहुत ही बखूबी वाकिफ हैं। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वो एंटी रेपिट्यूटी पे काम करेगा, एंटी रेपिट्यूटी से TSH निकलेगा, TSH एक्ट करेगा थायराइड पे जो अभी हमने सारे एक्शंस पढ़े हैं वो सब होंगे, जिससे T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब हमारी बॉडी में बहुत ही यूनिक फिनोमेना होता है बैलेंसिंग का, जो इंटरनल मिलेयू मेंटेन करता है। तो बॉडी सेंस करती है कि जहां प्रोडक्शन ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, तो TRH रुक जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक देगा एंटी रेपिटेटरी को, तो TSH का प्रोडक्शन रुक जाएगा। इससे वो उसका प्रोडक्शन रुकने का, उसका रिलीज रुकने से वो चीज कम होगी। तो इस तरह से ये बैलेंस चलता रहता है, सारा बैलेंस चलता रहता है, और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, अब हम आते हैं ग्वाइटर पे। अब ग्वाइटर क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं किसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है गटर, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, गटर हम बोलते हैं थ्रोट, क्योंकि यहाँ पे गटर मीन्स ट्यूब्स को भी हम मान के चलते हैं। यहाँ पे ईसोफेगस होता है, यहाँ पे ट्रेकिया होता है, तो थ्रोट को भी हम कहते हैं। तो बेसिकली जब थ्रोट बढ़ जाए उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। ये लैटिन वर्ड है, तो काफी पुराना वर्ड है। तो ये हम बोलते हैं जब आपका एंटीरियर नेक ये काफी सोलन हो जाए। अब ये सोलन हो जाएगा कैसे, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल नेक, जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे एक नॉडुलर सा बड़ा सा नेक है। आगे वी आर गोइंग टू शो यू मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ ग्वाइटर, जिससे आपको और एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि इतने बड़े नॉड्यूल्स तो हमें कम देखने को मिलते हैं। छोटे नॉड्यूल्स में हम कैसे पहचाने, या छोटे इलार्जमेंट में कैसे पहचाने ये ग्वाइटर है या ये नॉर्मल नेक कहना चाहिए, ये हम अभी समझते हैं। फाइन, तो क्या हुआ, अलग अलग टाइम में अलग अलग डेफिनेशन दी गई। अगर हम सारी चीजों को समराइज करें, तो 20th सेंचुरी में ऑटोप्सी सीरीज आई थी, जिसमें उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा 15 से 20 ग्राम नॉर्मल होता है, उन्होंने कहा 30 से 35 ग्राम के या उससे ज्यादा अगर थायराइड का टिश्यू हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि इसको ग्वाइटर था। लेकिन ये थी ऑटोप्सी सीरीज, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन ये चेक किए गए थे। तो अब ये जिंदा इंसानों में तो पॉसिबल नहीं है। अब अलाइव पेशेंट में आया, उन्होंने कहा जिस भी व्यक्ति का टर्मिनल फेलेंक्स ऑफ द थंब
उससे आप एग्जामिन करो, अगर वो उसके बराबर होना चाहिए, अगर वो उससे ज्यादा है तो मानते चलो कि इस व्यक्ति को गोइटर डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने, अगर टर्मिनल फेलिंग, द थिकनेस ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स, जो लेटरल लोब हो, इफ इट इज मोर देन दैट, देन द पेशेंट इज हैविंग गोइटर, उसका थायराइड बढ़ा हुआ है। और फिर दूसरे ने कहा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड 2 टाइम्स इट्स नॉर्मल साइज, जो उसका नॉर्मल साइज है उससे बड़ा हो। लेकिन क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ पैल्पेशन, छोटी ग्रोथ में ये चीज बताना डिफिकल्ट है। फिर आगे अल्ट्रासाउंड, अब अल्ट्रासाउंड से वॉल्यूम और अच्छा मेजर होने लगा। तो उसमें उन्होंने डेफिनेशन दिया कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, बहुत ऑब्वियस होता है तो वी डायरेक्टली से कि इट इज अ गोइटर। लेकिन अगर छोटा ग्लैंड है एंड यू आर डाउटफुल कि क्या हमें गोइटर लेबल करना चाहिए कि नहीं, तो हम अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे से उसको रिलायबली बता सकते हैं कि इसको गोइटर है कि नहीं। वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर ज्यादा है तो मतलब कि वो गोइटर की कैटेगरी में आ गया है। अब कभी भी हमारे पास पेशेंट आता है गोइटर का, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। और ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पूरा डायग्नोसिस बताता है। और इस डायग्नोसिस से एज अ सर्जन, एज अ क्लिनिशियन, हमें हेल्प मिलती है कि हमें इस गोइटर का करना क्या है। फर्स्ट है प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज, वेदर ये एंडेमिक है कि स्पोरेडिक है। अब एंडेमिक और स्पोरेडिक कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। थायराइड फंक्शन, ये यूथायराइड है, हाइपरथायराइड है कि हाइपोथायराइड है। लोकेशन, नेक में है कि नेक के साथ साथ मेडियास्टिनम में भी है, इंट्राथोरेसिक है। मॉर्फोलॉजी, सिंगल नोड्यूल है, मल्टीपल नोड्यूल विद डोमिनेंट नोड्यूल है, या मल्टीपल नोड्यूलर गोइटर है जिसमें कि सारे नोड्यूल्स के बीच में जो साइज है बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और अंडरलाइन इटियोलॉजी, क्या हम बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी गोइटर को कैरेक्टराइज करने के लिए। और ये कैरेक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसका मैनेजमेंट डिसाइड करना है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि एनाटमी अलग चीज है, फंक्शनैलिटी अलग चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेनी टाइम्स वी सी कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ, ये कि अगर इसका थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो उसको लेबल कर दिया जाता है कि तुम्हारा थायराइड नॉर्मल है। इट्स नॉट लाइक दिस। असेस द एनाटमी ऑल्सो सिमिलरली, अगर किसी का एनाटमी नॉर्मल है तो उसको लेबल कर दिया जाता है कि आपके थायराइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉट, यू मस्ट असेस द फंक्शन एज वेल। ओके। तो जो डिफ्यूज, अब दो तरीके के गोइटर्स होते हैं, डिफ्यूज और नॉडुलर। व्हाट इज डिफ्यूज? when there is a diffuse enlargement of the thyroid gland, उसमें आपको कोई नोड्यूल नहीं दिखेगा। जब आप पैल्पेट करोगे तो आपको लगेगा सिर्फ थायराइड बड़ा हो गया है, लेकिन बम्पीनेस नहीं होगी। सिमिलरली जब आप इमेजिंग कराओगे तो आपको एक डिफ्यूज एनलार्जमेंट मिलेगा, उसमें कोई डिस्क्रीट नोड्यूल नहीं मिलेगा, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो। Whereas nodular में you will feel bumpiness when you palpate, or during ultrasound or other imaging you find discrete nodules, then it is called nodular। तो ये होगी हमारी एनाटमी की बात। तो दो तरीके की एनाटमी होती है, या तो डिफ्यूज होगा या नॉड्यूलर। नॉड्यूलरिटी में वी डिस्कस कि ये सिंगल नॉड्यूल हो सकता है, मल्टीपल नॉड्यूल विद डोमिनेंट। मल्टीपल नॉड्यूल विद डोमिनेंट मतलब बाकी नॉड्यूल छोटे हैं, एक नॉड्यूल इतना बड़ा हो गया है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा होके बाकी उसने ग्लैंड को छोटा कर रखा है। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेटली बड़ा है। और मल्टी नोडुलर गोइटर में सारे जो नोड्यूल्स है थोड़े से प्रोपोर्शन को मेंटेन किए हुए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डिफ्यूज है वो हाइपो भी कर सकता है, यूथायरॉइड भी रह सकता है, हाइपर थायरॉइड भी हो सकता है, जैसे ग्रेव्स डिजीज। वैसे ही नोडुलर गोइटर है, ये हाइपोथायरॉइड भी हो सकते हैं, यूथायरॉइड भी हो सकते हैं, और हाइपर थायरॉइड भी हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिफ्यूज है तो वो हाइपर थायरॉइड ही होगा। वो हाइपोथायरॉइड जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में हम देखते हैं, या यूथायरॉइड भी हो सकता है जैसे कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। नोडुलर में वो हाइपोथायरॉइड भी हो सकता है, हाइपर थायरॉइड जैसे टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, और नॉड यूथायरॉइड जो मेजोरिटी पेशेंट हमारे पास आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंपनसेटेड। तो ये कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसलिए सिर्फ थायराइड फंक्शन टेस्ट पे आप किसी को नॉर्मल या एबनॉर्मल लेबल नहीं कर सकते। अब हम बात ईटियोलॉजी की। तो फ्रेंड, जैसा हमने डिस्कस किया था, ईटियोलॉजी दो तरीके की है। या तो वो आयोडीन डेफिशिएंट गोइटर जो इतने सालों से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, घेंगा होता है। लेकिन अब तो इतने साल हो गए हमको आयोडीन का सप्लीमेंटेशन लेते हुए। तो दूसरा आता है आयोडीन सफिशिएंट गोइटर्स, जो आयोडीन सफिशिएंट एरियाज में होते हैं, जिनको हम स्पोरेडिक गोइटर्स भी कहते हैं। अब आयोडीन डेफिशिएंसी हम कैसे पहचानेंगे? ये हम नहीं पहचान सकते, ये गवर्नमेंट डाटा होता है।
वो उसको स्क्रीन आउट करती हैं पॉपुलेशन को, और ये बताती है कि जहां 10% से ज्यादा पॉपुलेशन किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में है जिनको गॉइटर्स हैं, उनके यूरिन में या ब्लड में आयोडीन की जो जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए उससे कम आ रहा है, वो एरिया वो घोषित कर सकते हैं कि ये आयोडीन डेफिशिएंट एरिया है। और वहां जो गॉइटर्स मिलते हैं हम उनको एंडेमिक गॉइटर्स के नाम से जानते हैं, जैसे गोंडा हो गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, ये तराई के एरियाज हो गए। यहाँ अभी भी आयोडीन डेफिशिएंसी के फीचर्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे लीचिंग हो जाती है, वाटर से सॉल्ट निकल जाता है, आयोडीन निकल जाता है, तो ज्यादातर लोग जो भी ड्रिंक करते हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है। थैंकफुली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाए हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा और समझेंगे लेटर ऑन। फाइन। तो यहाँ जहाँ प्रूवन आयोडीन डेफिशिएंसी है और वहां ग्वाइटर होता है, तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंट ग्वाइटर है। नाउ आयोडीन सफिशिएंट इज स्पोरेटिक ग्वाइटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आयोडीन डेफिशिएंसी का इंसिडेंस कम हो गया, तो अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि स्पोरेटिक ग्वाइटर्स क्यों होते हैं। इनका प्रेवलेंस एज सच कम होता है, जैसे आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज में ज्यादातर लोगों के गले में आपको घेंगा मिलेगा, स्पोरेटिक ग्वाइटर्स का इंसिडेंस कम होता है, प्रेवलेंस कम होता है। और हम मानते चलते हैं कि कोई नॉन इन्फ्लेमेटरी और नॉन न्यूप्लास्टिक कॉजेस वाले जो होते हैं उनको हम लेके चलते हैं। 5% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन में होता है, 50% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में है थायराइड इंसिडेंटलोमास। तो जो स्पोरेटिक गोइटस होते हैं, पेशेंट को हो सकता है किसी और कारण से, सपोज अल्ट्रासाउंड गले का कराना पड़ा या उसने सीटी स्कैन कराया जिसमें गले के कट्स ले लिए, तो उसमें भी हमें 50% केसेस में कुछ ना कुछ इंसिडेंटल लीजन्स मिल जाते हैं। और 50% ऑफ पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास सॉलिटरी पल्पेबल नोड्यूल, उसने कहा एक गांठ महसूस हो रही है, हमने देखा हमें क्लिनिकली एक गांठ मिली, लेकिन जब हमने इमेजिंग कराई तो उसमें हमें कुछ एडिशनल लीजन्स मिल गए, उसको हम कहते हैं कि इंसिडेंटली अदर अदर नोड्यूल्स भी हमें मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर वो कहलाएगा मल्टी नोडुलर गोइटर विद डोमिनेंट नोड्यूल कहलाने लगेगा, ठीक है वो। और अगर सिर्फ एक ही नोड्यूल है अल्ट्रासाउंड में भी, तो वो हमारे लिए सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। अब ये स्पोरेटिक गोइटर्स होते क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर केसेस में हमारे पास कोई बहुत डेफिनेटिव एविडेंस आज भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेवरल मैकेनिज्म जो प्ले करते हैं उसको उन्होंने कैरेक्टराइज किया है। इंट्रिंसिक हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो हमारे अंदर है, लाइक जेनेटिक फैक्टर्स, उसके बारे में अभी मैं आपको और डिटेल बताऊंगी। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो इन्वायरमेंटली इंड्यूस होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, वी नो, अभी हमने डिस्कस किया कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन एक सिंगल स्टेप नहीं है, उसमें मल्टीपल एंजाइम्स हैं जो अलग अलग फेजेस में लगते हैं, रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं जो लगते हैं। तो अगर कोई भी एंजाइम या रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर अगर एबनॉर्मल है, जेनेटिकली एबनॉर्मल है, तो आप मान के चलिए बायोसिंथेसिस कम हो जाएगा उसका। ओके। और इस वजह से जो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। इसको हम डिसहार्मोनोजेनेसिस भी कहते हैं। okay? अगर ये कंप्लीट होगा डिफेक्ट, तो वो पेशेंट अर्ली ईयर्स में प्रेजेंट करेगा, यंग एज में। अगर ये डिफेक्ट पार्शियल होगा, तो जो पेशेंट है वो लेटर एजेस में प्रेजेंट करेगा हमारे पास प्रॉब्लम के साथ। ये डिफेक्ट यूजली इनहेरिटेड होते हैं, इसलिए हमें फेमिलियल क्लस्टर्स मिलते हैं। हो सकता है उसकी फैमिली में मदर को भी रहा हो, मदर की फैमिली में किसी को रहा हो, भाइयों को रहा हो, तो हमें कुछ कुछ क्लस्टर्स मिल सकते हैं। अब इसमें ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, MNG1 जीन, ये क्रोमोसोम 14 पे रहता है। इसके अलावा थायरोग्लोबुलिन जीन है, TSHR रिसेप्टर जीन है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सोडियम आयोडीन सिंथेस का जीन्स। यूजली ये जीन्स चेक नहीं किए जाते हैं रूटीन प्रैक्टिस में, लेकिन ये बस हमारी नॉलेज के लिए है कि इन जीन्स में डिफेक्ट हो सकता है, किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, देन वी मे थिंक ऑफ आइडेंटिफाइंग, बट रूटीनली दीज आर नॉट बीइंग डन, दिस इज जस्ट फॉर आवर जनरल नॉलेज। तो अब कैसे होता है, जीन इम्पेयर्ड हुआ, उससे क्या वो इंजाइम है वो बनना बंद हो गया या कम हो गया, इससे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। अब वो इफेक्ट करेगा तो उससे कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा, TSH बढ़ेगा, उससे हाइपरप्लेजिया होगा, एक्सेसिव कोलॉइड फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे नोडुलर फॉर्मेशन होगा। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस अभी डॉक्टर चानी हमें और डिटेल में समझाएंगी, लेकिन बस हमारे लिए अभी इतना समझना जरूरी है कि अगर पार्शियल डेफिशिएंसी है तो लेटर एजेस में प्रेजेंटेशन होगा, अगर अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो पेशेंट जल्दी भी आ सकता है। अब ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइट्रोजेंस। अब हम बात करते हैं जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है। एक्सट्रिंसिक मतलब जो हम इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारी डाइट, क्योंकि वो डाइट हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं।
तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, वो पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब खाने में क्या खाएं या खाने में परहेज क्या रखें। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि ब्रेसिका होता है और कसावा होता है, लेकिन कभी इतनी लंबी लिस्ट होती है कि याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है। और ये हमारे लिए भी एक आई ओपनिंग की तरह है, क्योंकि आजकल गोभी और ब्रोकली और पत्ता गोभी ये हर किसी के घरों में भी लगी हुई है और सब लोग बहुत अच्छे से, बट अब समझ में आ रहा है कि ये अच्छे खासे गोइट्रोजेंस होते हैं, और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारी थायराइड की जो पैथोलॉजी है, हर घर में कोई ना कोई थायराइड हार्मोन ले रहा होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। सो खैर, तो क्या होता है, जो ब्रेसिका है ये सारे क्या करते हैं, गोइट्रोजेंस वो डाइटरी सब्सटेंस हैं जो हम लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस से, मेटाबॉलिज्म से, और कैन एग्रीवेट द इफेक्ट्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ये जैसे कि ब्रेसिका फैमिली में कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ब्रोकली, इसमें ग्लूकोज इनोलेट्स होते हैं, ये कुछ आयोडीन से मिलते जुलते होते हैं और ये compete करते हैं आयोडीन से फॉर थायरोइडल अपटेक। तो जो सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर्स है ये वहां एक्शन करते हैं और वहां पे उनके काम को इंटरफेयर करते हैं। इसी तरह से अब कसावा हो गया, मेज मतलब जो हम कॉर्न खाते हैं, बम्बू, स्वीट पोटैटो, आजकल स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसमें होते हैं साइनोग्लूकोसाइड्स। अब साइनोग्लूकोसाइड्स competes with iodine for thyroid hormone synthesis। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए आयोडीनेशन होगा, कंजुगेशन होगा, ये वहां पे जाके एक्शन करते हैं। अब मिलेट है, सोए है, इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये टीपीओ की एक्टिविटी, थायराइड पेरोक्सीडेज की एक्टिविटी है, उसको कम कर देते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कई बच्चों को मिल्क एलर्जी होती है और उनको हम कहते हैं कि लैक्टोज फ्री आप मिल्क दो, तो ज्यादातर लोग उसमें देते हैं सोया मिल्क। तो अब ये भी बात उठ रही है कि जो इन्फेंट्स होते हैं या जो किड्स होते हैं, इन्हें ये सोया मिल्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके थायराइड पे अफेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, जो अगर आज की प्रेजेंटेशन से आप जरूर लेके जाइएगा। लेकिन ये भी देखा गया, अब हमारी जो इंडियन डाइट होती है एक मिक्स्ड डाइट होती है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन भर सिर्फ ब्रेसिका ही खा रहे हो, कॉलीफ्लावर ही खा रहे हो या कसावा मेज खा रहे हो, हमारी मिक्स डाइट होती है। तो ऐसा देखा गया है कि देर इज नो मेजर क्लिनिकल इफेक्ट अनलेस कंज्यूम्ड इन वेरी हाई लेवल्स, आप बहुत ज्यादा खा रहे हो और साथ ही साथ उस एरिया में आयोडीन की डेफिशिएंसी भी हो, या आपका थायराइड कमजोर हो, उसमें थायरोइडाइटिस की वजह से या किसी और रीजन से उसके आयोडीन अपटेक या दूसरे रिसेप्टर्स वीक हो, तब इनका मेजर इफेक्ट होता है। बट एनी हाउ नाउ थ्रू दिस प्रेजेंटेशन आई अंडरस्टैंड इन चीजों को हमें थोड़ी सी रोक लगानी है अपने पेशेंट्स पे, या कोई भी जिसको थायराइड डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ड्रग्स। अब दो ड्रग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एमियोडारोन, ये रूटीनली नहीं चलती है, कार्डियक पेशेंट में चलती है, लेकिन इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 37%। इसलिए कोई भी कार्डियक पेशेंट जो एमियोडारोन ले रहा हो, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि उसको हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब आयोडीन ज्यादा होने की वजह से उसके थायराइडल अपटेक में प्रॉब्लम हो। लिथियम, ये इनिबिट करता है कोलॉइड फॉर्मेशन और उसके बाद हार्मोन रिलीज। आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन से क्या होगा, ये थायराइड की फॉलिकल्स को नष्ट कर देंगे। जो बचा हुआ थायराइड फॉलिकल है वो प्रोलिफरेट होने की कोशिश करेगा, कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन या हाइपरट्रॉफी हम कहेंगे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हार्मोन बनाने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में वो थायराइड बड़ा हो सकता है। सिगरेट, सिगरेट हमें हर तरीके से नुकसान करती है, सिमिलरली हाइपोथायरॉयडिज्म भी प्रोवोक करती है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन फ्लेवोनॉइड्स की तरह ही एंटी टीपीओ एक्शन होता है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उनको खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब ये अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम और आयोडीन। अब यहाँ पे ये चीज एम्फेसाइज करनी जरूरी है कि अभी तक हम कह रहे थे कि, या हम पढ़ते आ रहे थे कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, यहाँ तो उल्टा हो गया, आयोडीन से घेंगा हो गया। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको हम कहते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं वॉल्फ चेक ऑफ इफेक्ट से। वैसे आयोडीन से आयोडीन इंड्यूस थायरोडाइटिस भी होती है, हम उसके बारे में एक डिटेल कवरेज करेंगे, जिसमें हम थायरोडाइटिस के बारे में जो बताएंगे तब हम उस पर और बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रोमल साइड है वहां पे सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर्स होते हैं। अब ये सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर्स आयोडीन को सेल के फॉलिकुलर थायराइड सेल्स के अंदर लेकर आते हैं। बट जब अगर आयोडीन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होगा, तो सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर्स ज्यादा आयोडीन अंदर लेकर आएंगे, जिससे कि ज्यादा थायराइड हार्मोन निकलेगा। बट क्या होता है, बॉडी में तो बैलेंस की कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करेगी, वो
अपने डोर शट डाउन कर देगी, मतलब सोडियम आयोडीन सिंपोटर्स है उनका डाउन रेगुलेशन कर देगी। तो यहाँ से सोडियम आयोडीन सिंपोटर्स सपोज अगर 100 थे, उसको डाउन रेगुलेट करके 50 कर देगी। तो इस वजह से भी थायराइड का आयोडीन का अपटेक है ये कम हो जाएगा। अंदर आके जो एक्सेस आयोडीन होती है ये इनिबिट कर देती है थायराइड परऑक्सीडेज को। तो जब तक कम अमाउंट में था तब तक तो थायराइड परऑक्सीडेज रूल कर रहा था और उस आयोडीन को डी आयोडीनेट कर रहा था। जब आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो वो थायराइड परऑक्सीडेज को ही इनिबिट कर देती है। ये टेम्पररी इनिबिशन होता है। इससे क्या होता है, सारे प्रोसेस इनिबिशन, आयोडिनेशन, कंजुगेशन सब पे इफेक्ट पड़ता है। अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन का रिलीज भी ये अफेक्ट करती है। बट ये जो इफेक्ट होता है यूजली ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। अगर नॉर्मल थायराइड है तो ये एस्केप हो जाएगा आफ्टर 10 डेज, 10 to 14 डेज के अंदर वापस से थायराइड हार्मोन है ये वापस से अपने नॉर्मल लेवल में आने लगेगा और फंक्शनैलिटी रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन अगर थायराइड पहले से ही बीमार है, लाइक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, उसके फॉलिकल्स पहले से डिस्ट्रॉयड है, आपने जाके और इनिबिशन कर दिया, तो इफेक्ट लंबा चल सकता है या हो सकता है लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। उस कंडीशन में थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से टीएसएच बढ़ेगा। टीएसएच बढ़ने की वजह से जितने भी फंक्शनिंग थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है जो रिमेनिंग है उन पे वो ज्यादा एक्शन करेगा, क्योंकि वो उनको आदेश देगा, वो उनको ऑर्डर करेगा कि नहीं आपको ज्यादा थायराइड हार्मोन निकालना है क्योंकि बॉडी में कमी हो रही है। तो ये एक नट शेल में अगर हम कहें कि डाइट्री आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई या स्पोरेडिक हो गया, दोनों में ही अल्टीमेटली इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। अब ये जो इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन है ये हमारे ब्लड लेवल में हम डिटेक्ट कर भी सकते हैं। हो सकता है हमारे ब्लड लेवल्स में ये डिटेक्ट ना हो, क्योंकि हम जो डिटेक्शन करते हैं वो एट सिंगल पॉइंट इन टाइम करते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस बॉडी में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से छोटा छोटा अप डाउन ये चलता रहता है और वो अपने ग्लैंड्स पे अफेक्ट करते हैं। टीएसएच लेवल बढ़ेगा, इससे हाइपरट्रॉफी एंड हाइपोप्लेसिया ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होगी, जिससे धीरे धीरे इनलार्ज है ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लगेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड डॉक्टर चानी कि वो हमें एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली माइक्रो सेलुलर लेवल पे ये चेंजेस आते कैसे हैं। सो चानी ओवर टू यू। So we'll proceed further. तो अब हम समझेंगे 3G as we call it, it is a clinical term. As a pathologist, the new term has come, which is thyroid follicular nodular disease. Pathology report means a multinodular goiter. So it is defined as a common abnormality of the thyroid with presence of multifocal benign nodules that span a hyperplasia neoplasia sequence, which is a very important point. That is because hyperplasia neoplasia sequence. And morphological criteria alone cannot always distinguish hyperplastic from neoplastic lesions disorder that has pathologized as thyroid follicular nodular disease. So the reason on morphology alone cannot always differentiate whether it is a hyperplastic nodule or a neoplastic. That requires clonal studies. By clonality, we can determine, but not always. So how are nodules formed? So there was a very good paper by Dr. Struder and his colleagues. So they explained these nodules are formed. So first is a goitrogenic agent acting over a long period of time. So various goitrogenic agents have been mentioned by Dr. Sudhi in the previous slides. So what happens? There are two main consequences of these goitrogens. One is accumulation of large strands of connective tissue, and the second is replication of thyroid follicles. Both these are important in formation of a multinodular goiter. So what happens? How is there accumulation of connective tissue? So first, fresh hemorrhagic necrosis of follicles and interfollicular tissue happens. That is because of an insufficient capillary supply, which is unable to cope with the proliferating thyroid tissue. So if we see the photomicrograph on the left side, we can see the areas of hemorrhage, and adjacent to the hemorrhage, this is a granulation tissue. This is followed by early repair, which consists of macrophages and granulation tissue, which we can see here. Then this progresses to a late repair. Late repair has fibrosis and poorly cellular scars. So when there is fibrosis and poorly cellular scars, so that will lead to a mold for the cells not expand easily. And the second consequence is proportionate replication of thyroid follicles because of a very important point is intercellular heterogeneity. Because the cells are heterogeneous, they are heterogeneous in respect to iodination capacity,
peroxidase capacity, mitotic activity, and endocytic response. So, in response to TSH stimulation, the cells will differently. Not only is it extrathyroidal disorder that leads to increased TSH bonding in a normal way, application of follicles, that is, the number of follicles will increase as well as enlarge because of disordered metabolism. So when there is replication and enlargement of follicles in a poorly extensible connective tissue, so all these processes ultimately lead to nodules. So if we see the photomicrograph on the right side, we can see multiple nodules are there and they are surrounded by fibrous goiter. Another interesting finding which we find in multinodular goiter is autonomy or hyperthyroidism. So what is a autonomous thyroid nodule? Autonomous thyroid nodule is a localized nodular lesion of the thyroid gland characterized by growth, iodine uptake, and function, all independent from TSH control. As we saw in the previous slides, there is a feedback mechanism in place for controlling the secretion of thyroid hormone, which is under the control of TSH. But what happens here? It is a very good diagrammatic representation which we can see. For instance, if there is an iodine deficiency or any other goitrogenic stimulus, so it will lead to a hyperplasia, and iodine deficiency in addition will lead to free radical formation. Hyperplasia and free radical formation produces a conducive environment for mutagenesis. So initially single cells will be there with somatic mutations. Alone they won't be so effective, but as the hyperplasia progresses, goiter with cell clones is formed containing a somatic mutation. So these cells now multiply and they are now forming small cell clones. And as there is further expansion of these cell clones with advantageous mutation, it will lead to a cold or hot nodules. So hot nodules are formed because of it is formed of clone of cells with specific mutations. So what are the mutations we find? Small cell clone with activating TSHR mutation or TSH receptor mutation. So sometimes we find mutations in the receptors. So what happens when there is mutation in the receptor? It will lead to constitutive activation of CAMP cascade. As explained by Dr. Sudhi in the previous slide, we saw that how the TSH acts on the TSH receptor and it further leads to activation of CAMP pathway and further production of thyroid hormone and thyroglobulin and everything. So when there is constitutive activation, का मतलब है कि now it is not under the control of any external stimulus. वो अपने आप ही stimulated है and it is producing thyroid hormone on its own. So such patients may develop subclinical or overt hyperthyroidism. Thank you very much, Chani. Thank you for your elaborate description. So अगर मैं इन सारी चीजों को sum up करूं, तो whenever there is high TSH, जो जब TSH बढ़ता है, so the thing is कि जितने सारे follicular cells होते हैं, they are not equally responsive to the circulating levels of TSH. उसमें से कुछ सेल्स हैं वो ज्यादा रिसेप्टिव होंगे, कुछ सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं होंगे. तो जब भी TSH का स्टिमुलेशन होता है थायराइड पे, लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन, अगर शॉर्ट टर्म स्टिमुलेशन होगा तो सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इक्वली इनलार्ज हो जाएंगे, जिसमें हमें डिफ्यूज गॉइटर मिलेगा. बट अगर लॉन्ग टर्म इंटरमिटेंट TSH स्टिमुलेशन हो रहा है, जैसे हम लॉन्ग टर्म गॉइटर्स में देखते हैं, तो ये जो डिफ्यूज गॉइटर इनिशियली बना था, धीरे धीरे उसमें से इंटरमिटेंट होने की वजह से जब TSH का लेवल कम होगा तो ये वापस से नॉर्मल की तरफ रिज्यूम करेंगे. जब TSH का लेवल बढ़ेगा तो उसमें से जो सेल्स ज्यादा हाइपर एक्टिव होंगी या रिस्पॉन्सिव होंगी TSH के लिए, वो ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगी. जो सेल्स कम रिस्पॉन्सिव होंगी वो कम प्रोलिफरेट करेंगी. इस तरह से डिफरेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है सेल्स के बीच में. तो इससे धीरे धीरे नॉडुलैरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है. अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ इन सारी चीजों को, तो जो ग्रोथ लॉन्ग स्टैंडिंग गॉइटर्स में इंटरमिटेंट TSH स्टिमुलेशन की वजह से differential growth होती है, meaning in the same follicle all the cells are not equally stimulated, there is a differential growth pattern. Okay, कुछ सेल्स ज्यादा, अब वो अपना नोड्यूल बना लेंगी. अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं. ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ TSH बढ़ने की वजह से, तो इससे जो एग्जिस्टिंग कोलॉइड फॉलिकल्स है, कोलॉइड फॉलिकल्स का साइज बढ़ जाएगा और उसमें से ज्यादा कोलॉइड फिल्ड हमें फॉलिकल्स मिलेंगे. दूसरा, जो डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है फॉलिकुलर सेल्स की, वो खुद में बड़े बड़े नोड्यूल्स बना लेंगी. अब इनके बीच में जो सेंटर में जो कोर होता है उस न्यू नोड्यूल का,
वो आउट नंबर कर जाता है, देन द वस्कुलर सप्लाई धीरे धीरे वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगी या हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। फिर वहां पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। तो ये टाइम लेता है, कई सालों का टाइम लेता है। कभी कभी किसी में हेमरेज होने से वो क्वार्टर का साइज बढ़ सकता है, इमीडिएटली पेन हो सकता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऑटोनॉमी के लिए डॉक्टर चानी ने बताया कि जब प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है, जैसे इंटरमिटेंट टीएसएच स्टिमुलेशन हो रहा है, तो ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन की वजह से म्यूटाजेनेसिस शुरू हो गई, डीएनए में थोड़ा सा म्यूटेशन आ गया। तो कई बार ये म्यूटेशन होता है टीएसएच रिसेप्टर्स में। तो सेम अमाउंट ऑफ टीएसएच रिसेप्टर्स हैं, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई हो गई है सर्कुलेटिंग अमाउंट ऑफ टीएसएच के लिए। तो टीएसएच नॉर्मल है ब्लड लेवल्स में, लेकिन क्योंकि सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो उन सेल्स को ज्यादा स्टिमुलेट कर पा रहा है, जिसमें से कई सेल्स इतनी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है कि अब उनको लो टीएसएच में भी, टीएसएच का लेवल कम है तब भी वो एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर पा रही हैं, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग, इसीलिए लंबे लॉन्ग टर्म जो क्वाइटर्स होते हैं, इनिशियली दे में बी नॉन टॉक्सिक, बट समय के साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब उनके अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है और वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं। खैर, अब हम जो सबसे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉइटर एंड मेलिग्नेंसी। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा कि गॉइटर के साथ, लॉन्ग स्टैंडिंग गॉइटर में फॉलिकुलर थायराइड कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। गॉइटर, when they start, most of the goiters are non-malignant, they may not be malignant, लेकिन they pose a high risk for future malignancy, 5 to 10% risk of developing a malignancy is there। और ये रिस्क बढ़ जाता है अगर आपकी फैमिली में, there is a family history of cancers, या आपको हेड एंड नेक रेडिएशन मिला हो बचपन में। तो इवन एज लो एज 6 सेंटीगायराइड इंक्रीजेस द रिस्क बाय 6 टाइम्स। इसलिए बच्चों में हेड एंड नेक रेडिएशन देना तो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी मस्ट अवॉइड। अच्छा, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? तो लाइक इन आर पेशेंट, जो ये पेशेंट था, रेड फ्लैग होगा कि पेशेंट कहेगा कि क्वार्टर था, कई सालों से पड़ा था, अभी कुछ महीनों या कुछ हफ्तों से ये रैपिड इनलार्जमेंट करनी, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। या उनमें से कोई एक नोड्यूल बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए, या उसको बगल में लिम्फ नोड्स आने शुरू हो जाए, या उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाएगी, उसकी फिक्सिटी हो जाए, वो जो पहले थोड़ा फ्रीली मोबाइल था अब थोड़ा सा फिक्स होने लगे, या न्यू ऑनसेट ऑफ कंप्रेसिव सिम्टम। अभी तक खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, सांस में कोई परेशानी नहीं थी, अब कुछ हफ्तों या महीनों से खाना सटकने में थोड़ी दिक्कत आने लगी है, या गले में ऐसा लगता है जैसे दबाव आ गया। तो दीज आर नॉट द गुड सिम्टम। या खांसी आते आते ब्लड आ गया, या थोड़ी सी उल्टी हुई उसमें से ब्लड आ गया। So these may be the red flags and we must intervene immediately। अब ये ऑटोप्सी सीरीज है, उसमें डिटेक्ट हुई 36% ऑफ द गॉइटर्स में मेलिग्नेंसी डिटेक्ट हुई है। हाँ, जो क्लिनिकली रेलेवेंट कई बार मास स्क्रीनिंग हुई उसमें 0.2% आया, लेकिन ऑटोप्सी सीरीज में 36, मतलब 1/3 ऑफ द पेशेंट्स हु डाइड बिकॉज ऑफ सम अदर कॉजेज बट दे हैड थायराइड गॉइटर, उनमें मेलिग्नेंसी पाई गई है। तो पॉसिबली है कि वो एसिम्टोमेटिक मेलिग्नेंसी रही है। अब अगली चीज आती है कंप्रेसिव सिम्टम्स। तो जो गॉइटर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी प्रॉब्लम होती है, अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेसिस दिखने के अलावा, हमें जो प्रॉब्लम आती है एज अ क्लिनिशियन, टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकती है लंबे टाइम में। अब ये टॉक्सिसिटी से प्रॉब्लम क्या होता है, ये दो ऑर्गन्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, हार्ट पे और बोन्स पे। तो चाहे सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म हो या सिम्टोमेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म हो, बोन्स और हार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। और ओल्ड एजेस में हम समझ सकते हैं बोन्स भी वीक हो जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, इसमें ईस्ट्रोजन कम हो गया। दूसरे हार्ट, ज्यादातर लोगों को हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो हार्ट पहले ही बहुत सारी चीजें झेल रहा है, अब थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए डबल मार हो गई है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कंप्रेसिव सिम्टम्स की। अब कंप्रेसिव सिम्टम्स को समझने के लिए हम यहाँ ये डायग्राम देखते हैं, ये सीटी स्कैन्स हैं जिसमें नॉर्मल थायराइड ग्लैंड को दिखाया गया है। तो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड की पोजीशन कुछ ऐसी होती है, बीच में ये ट्रैकिया होता है, ये सजाइटल व्यू है, ये फ्रंटल व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो ये ट्रैकिया है, ये नॉर्मल थायराइड है, और ये है पीछे ईसोफेगस, जो अमूमन ज्यादा दिखता नहीं है, एक छोटा सा आपको ब्लैक डॉट दिखेगा जिसमें एयर की वजह से। लेकिन अब अगर थायराइड का ग्लैंड बढ़ेगा तो क्या होगा, या तो ये आगे जाएगा फ्रंट ऑफ द नेक पे, तो हमको बड़ा सा गॉइटर, एक फुलनेस दिखाई देगी नेक में, नोडुलैरिटी दिखाई देगी। या फिर वो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो कंप्रेस करेगा ट्रैकिया को,
जिससे कि ट्रैकियल कंप्रेशन होने की वजह से उसको सांस में दिक्कत हो सकती है, चोकिंग हो सकता है। ईसोफेगस को अगर कंप्रेस करने लगा तो खाना सटकने में दिक्कत होने लगेगी पेशेंट को। नर्व्स को अगर इंटरप्ट कर दिया तो उसकी नर्व वीकनेस आने लगेगी। वेन्स को अगर उसने दबाव देना, जैसे कि अगर इसमें इंटरनल जुगुलर वेन है या कैरोटिड्स है, तो उसको वीनस कंप्रेशन के फीचर्स आने लगेंगे। हेड एंड नेक प्रोमिनेंट वेन्स हो जाएंगी, थायराइड पे बहुत ही प्रोमिनेंट वेन्स आने लगेंगे। इसके अलावा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो है मेडियास्टिनल। और ये देखिए सारा जो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, उसने पूरा चेंज कर दिया वहां पे। तो सर्जरी के दौरान ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ज्यादा आता है। अब इसके अलावा हमें इश्यूज आते हैं मेडियास्टिनल एक्सटेंशन की। सो व्हाट हैपेंड, मतलब थायराइड फॉलिकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें उसको जहां जगह मिलती है वो वहां ग्रो करता है। तो अगर आगे ग्रो करेगा तो हमको थायराइड में एक बड़ा सा फॉलिक, बड़े से नोड्यूल्स दिखाई देंगे, थायराइड में बड़ा ही फेयरी सा लुक दिखाई देगा, जैसे मैंने कुछ फोटोज दिखाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोअर पोर्शन ऑफ थायराइड है वो इनलार्ज करे नीचे। जैसे ही वो थोरेसिक इनलेट को क्रॉस करता है उसके पास एक बड़ा सा रूम है फैलने के लिए। सो आप देख सकते हो कि एक डम्बेल की तरह यहाँ पे थायराइड नोड्यूल्स होंगे। जो लोअर पोर्शन ऑफ थायराइड, जो लोअर पोल्स ऑफ थायराइड लोब्स हैं, अगर वो इनलार्ज हो जाएंगे, दे मे एक्सटेंड इनटू मेडियास्टनम। यू मे गेट ए हिस्ट्री, पेशेंट कहेगा पहले थायराइड की ग्लैंड थी, अब कुछ महीनों से मैंने कोई दवाई खाई या फिर मैंने होम्योपैथ कराया, कुछ भी किया और वो खत्म हो गई। अब फील नहीं होती। वो फील नहीं होती मतलब वो खत्म नहीं हुई। प्लीज चेक करो कि कहीं वो ऐसा ना हो मेडियास्टनल एक्सटेंशन हो गया हो उसका, नीचे हो सकता है स्लिप कर गई हो। क्योंकि अगर वो मेडियास्टनल एक्सटेंशन हो गया, नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्जरी विल इंक्रीज। इट मे नॉट बी पॉसिबल कि हम उसको सर्वाइकल रूट से बाहर निकाल पाए। वी मे देन हैव टू डू स्टेनोटमी। सो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज सम ऑफ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट fear factor that we all clinician deal with। तो अब नेचुरल हिस्ट्री क्या है? सपोज अगर पेशेंट को हमने ऑपरेट नहीं किया तो क्या होगा? लेट्स सी। अगर वो डिफ्यूज ग्रेड 1 गोइटर है तो ज्यादातर केसेस में रिमिट भी हो सकता है वो नॉर्मल, क्योंकि उसमें कोई नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ ग्लैंड्स है, थायरोसाइट्स है और थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी हुई है, हो सकता है वो रिवर्ट बैक कर जाए। लेकिन अगर उसमें नोडुलैरिटी डेवलप हो गई है तो मेजोरिटी आर नॉन रिग्रेसिव, वो नोड्यूल्स पड़े रहेंगे उसके हमेशा। अब ये नोड्यूल्स या तो उतने रहेंगे या ग्रेजुअली प्रोग्रेस होंगे समय के साथ। यूजली स्लो प्रोग्रेशन होता है। ऐसा देखा गया है 0 to 20% इंक्रीज इन साइज होता है एनुअली, डिफरेंट स्टडीज में कोटेड है। लेकिन कभी अगर उसके अंदर इंट्रानोडुलर हेमरेज हो गया तो फिर वो नोड्यूल्स थोड़ा तेजी से बढ़ सकते हैं। पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, या तो उसके अंदर नोडुलर इंटरनोडुलर हेमरेज हुआ है या फिर हो सकता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए मैलिग्नेंसी मस्ट ऑलवेज बी रूल्ड आउट। देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे हमने डिस्कस किया, हाइपरथायरॉयडिज्म लॉन्ग स्टैंडिंग वाइटर्स में बहुत कॉमन है। और 10% ऑफ नॉन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर वाइटर में डेवलप हाइपरथायरॉयडिज्म इन लाइफ टाइम। अगर 100 मरीज हैं नॉन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर के, इन देयर लाइफ टाइम पॉसिबिलिटी है कि 10 से 15 मरीजों को हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाए। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पेशेंट्स के? ये वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को कोई कंप्लेंट ना हो, इंसिडेंटल हमने कोई और इमेजिंग कराई और हमको थायराइड में नोड्यूल्स मिल गए। या हो सकता है पेशेंट प्रेजेंट करे कि अच्छा हमको एंटीरियर नेक स्वेलिंग हो गई, इसको आप चेक कीजिए। या हो सकता है पेशेंट एंटीरियर नेक स्वेलिंग के साथ कंप्रेसिव सिम्टम्स के साथ कि अच्छा मुझे खाना सटकने में दिक्कत है, मेरे गले में चोकिंग सेंसेशन है, मेरी आवाज में कमी आ गई है। ये हल्के से लेके बहुत सीवियर सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कितनी पुरानी बीमारी है और हमारा रेट ऑफ इनलार्जमेंट क्या है। तो अब इसमें टॉक्सिक सिम्टम्स हो सकते हैं। टॉक्सिक सिम्टम्स में पेशेंट को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया है, अगर उसको हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया है तो उसको टॉक्सिक सिम्टम्स में दिल घबराना, पसीना छूटना, हाथ कपकपाना, ये सारी चीजें, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। तो अब अगर पेशेंट आता है हमारे पास तो हम 3 चीजें उसकी इवेल्युएट करते हैं या हमें करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है, फर्स्ट चेक फॉर द फंक्शनैलिटी। ये कैसा ट्यूमर, ये कैसा गोइटर है, ये यूथायरॉयड है, हाइपोथायरॉयड है या हाइपरथायरॉयड है। और अगर ये हाइपरथायरॉयड या हाइपोथायरॉयड है तो उसके साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। जैसे मैंने कहा हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ बोन्स और हार्ट्स, इनका इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ लोकल इन्वॉल्वमेंट। रेट्रोस्टेनल एक्सटेंशन सिर्फ गले में है या छाती में पहुंच गया, ट्रैकिया कैसा है, ईसोफेगस कैसा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फंक्शनैलिटी हम एसेस करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें टीएसएच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो पहले से कोई दवाई नहीं ले रहा है तो। एक्सटेंट ऑफ लोकल इन्वॉल्वमेंट के लिए हम इमेजिंग देखते हैं। इमेजिंग में हमारा लोकल अल्ट्रासाउंड हो सकता है या सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, डिपेंड करता है क्लिनिशियन की अवेलेबिलिटी क्या है, कौन सी इमेजिंग अवेलेबल है, और क्लिनिशियन किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है। कुछ लोग एमआरआई में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ सीटी स्कैन में कंफर्टेबल होते हैं। तीसरी चीज हमें रूल आउट करनी चाहिए कि क्या ये मैलिग्नेंट गोइटर है या फिर ये एक बिनाइन गोइटर है, जिसके लिए हम कराते हैं एफएनएसी। तो अब ये जानते हैं जो गोइटर होता है, हर किसी का गोइटर सेम नहीं होता है, किसी का छोटा गोइटर होगा, किसी का बड़ा गोइटर होगा। तो इसको ग्रेड किया गया है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी समझने के लिए। उसको गोइटर है लेकिन ये नॉन विजिबल और पैल्पेबल गोइटर, मतलब कि पेशेंट आया, उसको उसको गले में गांठें हैं, उसकी थायराइड में गांठें हैं, हो सकता है इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ, हो सकता है उसे हल्की सी फुलनेस निकली, या फिर आपने किसी वजह से उसके गले को पैल्पेट किया, आपको लगा कि गठीलापन है लेकिन आपको गोइटर दिख नहीं रहा, तो वो डिफ्यूज इनलार्जमेंट हो सकता है इंसिडेंटल फाइंडिंग हो। ये होते हैं ग्रेड 1 गोइटर, जो नॉन विजिबल और नॉन पैल्पेबल गोइटर। अब नॉन पैल्पेबल में आप कह सकते हो कि ये तो दिख भी नहीं रहा, तो पैल्पेट भी नहीं हो रहा, तो ये कैसा गोइटर है। तो हो सकता है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो, उसके आपने कोई सीटी कराया, अल्ट्रासाउंड किसी भी वजह से कराया हो, और उसके अंदर आपको मल्टीपल नोड्यूल्स दिखे हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड में उसका साइज 2 स्टैंडर्ड डिवीजन से बड़ा है, तभी भी हम उसे गोइटर लेबल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है 1A एंड 1B। 1A क्या होता है कि जब हम नॉर्मल अपनी पोजीशन में है, एनाटॉमिकल पोजीशन में, देन द गोइटर इज नॉट विजिबल लेकिन पैल्पेट हो रहा है, जब हम उसको पैल्पेट कर रहे हैं तो हमें पैल्पेट हो रहा है, ये हो गया 1A। 1B हो गया कि नॉर्मल पोजीशन में गोइटर इज नॉट विजिबल, बट जब उसको नेक एक्सटेंड करने को बोलते हैं तो हमें उसमें गांठ महसूस होगी, वो विजिबल हो जाएगी, पैल्पेशन हो रहा है इसमें। लेकिन 1A में हमें नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन में वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब नेक एक्सटेंड करेंगे तो विजिबल हो जाएगा, ये हो गया 1B। और 2 में क्या होगा, इट इज अ विजिबल थायराइड स्वेलिंग नॉर्मल नेक पोजीशन में, इनलार्ज, और आपको दिख भी रहा है और आप पैल्पेट भी कर पा रहे हो, दिस इज 2। ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास थायराइड स्वेलिंग करके आते हैं वो 2 में होते हैं। ज्यादातर जो जीरो वाले हैं वो हमारे पास इंसिडेंटल लीजन करके आते हैं, और कुछ जो हल्के थायराइड वाले होते हैं या जो शॉर्ट नेक वाली जो लेडीज होती हैं, वो हमारे पास 1 करके आती है। 1A हो सकता है या 1B हो सकता है। अब मरीज आ गया, हमने उसको देख लिया, हमने कहा ये नॉन टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर है या अपेरेंटली बिनाइन है, सर्वाइकल है। अब हमारे ट्रीटमेंट गोल्स क्या होते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट गोल्स है, उन सारी चीजों को हम समराइज कर रहे हैं। ये है रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, क्या वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से आया है, या उसको कोई फंक्शनल डिफॉर्मिटी हो रही है, उसको खाना सटकने में दिक्कत है, उसको सांस में दिक्कत है। तो रिलीफ ऑफ लोकल सिम्टम्स, उसकी सिम्टम्स को रिलीव करना। करेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, जो दिख रहा है उसको उसको हमें रिमूव करना है। रिलीफ फ्रॉम टॉक्सिक सिम्टम्स एंड कॉन्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। तो जो हमने फंक्शनैलिटी एसेस की, सपोज उसको टॉक्सिक सिम्टम डेवलप हो गए विच इज नॉट गुड, even if it is subclinical, we must understand it is not good for the health of the patient, subclinical thyrotoxicosis, तो हमें उसको खत्म करना है। और because it is a lifelong problem, we cannot give lifelong therapy medicines to anyone, so surgery is the only answer। and protection from malignancy, मतलब हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में अराउंड 1/3 ऑफ पेशेंट्स में डेवलप मैलिग्नेंसी, इसलिए उनको हमें मैलिग्नेंसी से प्रोटेक्ट करना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। अब सर्जरी किस में करनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन किस में करनी चाहिए, देखो क्लियर इंडिकेशन फॉर सर्जरी होती है। बड़ा गोइटर हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है, यू मस्ट इंटरवीन। रेट्रोस्टेनल गोइटर हो गया, स्पेशली अगर उसकी लंग में एबनॉर्मल फ्लो लूप्स आने लगे। मल्टी नोडुलर गोइटर है, डोमिनेंट नोड्यूल स्पेशली 4 सेंटीमीटर, चांसेस बहुत हाई है कि इस नोड्यूल के अंदर हाइपरप्लास्टिक चेंजेस, म्यूटाजेनिक चेंजेस हो गए होंगे। ये हो सकता है आगे जाके या तो कैंसर बन गया है या बनेगा। डोंट लीव सच नोड्यूल्स। MNG विद डोमिनेंट नोड्यूल, ऑलवेज कंसीडर सर्जरी। कॉस्मेटिक रीजन, पेशेंट को बाहर से विजिबल स्वेलिंग दिखाई दे रही है, देन यू मस्ट इंटरवीन कॉस्मेटिकली। हाई रिस्क फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, क्योंकि इन लोगों की पॉसिबिलिटी है कि इनमें कैंसर बने आगे जाके, इसीलिए अगर हाई रिस्क फैमिली हिस्ट्री, आपने कहा मदर को भी हुआ, नाना के यहाँ हुआ या फादर की फैमिली में हुआ, तो यू मस्ट कंसिडर सर्जरी कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन। और या आपको क्लियर कट सर्जरी का सस्पिशन लग रहा है, आपको लग रहा है कि रैपिड इनलार्जमेंट हो गया, कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ गया है, उसको कंप्रेसिव सिम्टम्स आ गए हैं, तो ऐसे ऐसे गोइटर्स को छोड़ना ठीक नहीं है, बेटर है यू मस्ट ऑपरेट। इट इज ऑलवेज गुड टू बी सेफ देन सॉरी। ऑब्जर्वेशन हम किस में कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट है,
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इमेजिंग में हमको पता लगा कि कुछ मल्टीनोडुलर गॉइटर है, पेशेंट इज अनविलिंग फॉर सर्जरी, उसको गॉइटर है, आपने रूल आउट कर लिया कैंसर वैंसर की फीचर्स नहीं है, अपरेंटली बिनाइन है, और पेशेंट भी बहुत ज्यादा वरिड नहीं है, और होगा गॉइटर ठीक है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको चेकअप पे रखेंगे, परफेक्टली ओके, यू थायराइड है, उसको कोई टॉक्सिक सिम्टम्स नहीं है ना, उसका उसका थायराइड प्रोफाइल एकदम नॉर्मल है। तो हम ऐसे लोगों को 6 से 12 महीने के फॉलोअप पे रख सकते हैं विद फिजिकल एग्जामिनेशन एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई टॉक्सिसिटी ना डेवलप हो रही हो, या उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट की सप्लीमेंटेशन की जरूरत हो, या उसका गॉइटर जो पहले एसिम्टोमेटिक था, बहुत पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, हम उसको 12 से 24, 1 से 2 साल पे हम इमेजिंग करा सकते हैं, या बीच में कभी पेशेंट हमसे कंप्लेन करे कि अरे अभी अभी मुझे लग रहा है कि कुछ हैवीनेस बढ़ गई है, या साइज बढ़ गया है, या प्रोमिनेंस बढ़ गई है, तो हम बीच में भी उसको अल्ट्रासाउंड या इमेजिंग करा के चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और हमें लगता है कि देर इज मोर देन 10% इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, पिछली बार कराए थे 6 महीने पहले, उससे भी 10 से 20% अगर बढ़ गया है, देन हम हमें डिस्कस करना चाहिए, देन इट बिकम्स इंडिकेशन फॉर सर्जरी, तब हमें उसको सर्जरी के लिए ज्यादा इंक्लाइन होना चाहिए। अब इसकी थेरेपी क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट है, अब हम अपने लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं इस टॉपिक के। तो 3 इंपॉर्टेंट मोडेलिटीज होती हैं जो ज्यादातर पेशेंट्स रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले है LT4 सप्रेशन थेरेपी, दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन, और तीसरा है सर्जरी। तो अब हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं, क्या है, किसमें करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और क्या लॉन्ग टर्म इसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसा हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा है इसका, कि किसी भी वजह से TSH बढ़ रहा है, या तो वो कंटिन्यूसली या इंटरमिटेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट की वजह से थायराइड का जो फॉलिकुलर फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है। तो TSH को हम बढ़ने ना दें, हम TSH को सप्रेस कर दें, हम बाहर से लीवोथायराइड, थायराइड की कमी की वजह से TSH बढ़ रहा है, हम बाहर से थायराइड को सप्लीमेंट कर देंगे तो TSH नहीं बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड LT4 सप्रेशन थेरेपी और TSH सप्रेशन थेरेपी। अब इसका रेशनल भाई सेम बेस्ड ऑन पैथोफिजियोलॉजिकल, और ये लॉजिकल भी लगता है, पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, बहुत पुरानी रिपोर्ट्स हैं, नए नई रिपोर्ट्स भी हैं इसके ऊपर, और मोस्ट ऑफ द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फेवर दिस थेरेपी एज द इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ज्यादातर लोग इसको देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक लो डोज का थायरोक्सिन देते हैं, जैसे 25 दे दिया, उसका जो उसका जो TSH है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको थायरोक्सिन की डोज देते हैं, 25 दे दी, 50 दे दी, 75 दे दी, डिपेंड करता है उसका बॉडी वेट कितना है, और उसको देके उसको फॉलो अप पे रखते हैं। अब इसका जो ऑनसेट होता है ये स्लो होता है, एकदम से आपको फर्क नहीं मिलेगा, और 10 से 25% पेशेंट में रिस्पॉन्ड विद डिक्रीज इन गॉइटर साइज ऑफ ग्रोथ रेट, या तो उनका गॉइटर का साइज थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा देखा गया है, 1/4, 10 से 25% मरीज, या उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो कम हो जाएगा, ऐसा पब्लिश रिपोर्ट्स में है। लेकिन अब इसके लिमिटेशन है, तो ये एक अच्छी थेरेपी लग रही है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, और साइज भी कह रहे थे, अगर आपने 100 मरीजों को दिया तो 10 से 25 मरीज आपको कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा कम हो गया मेरा ग्वाइटर, और ये जो ग्वाइटर का जो डिक्रीज है, ऐसा देखा गया है अराउंड 20 से 30% मैक्सिमम 50% की तरफ गया, तो 100% कभी भी कम नहीं होता है। हाँ, जो पहले था उससे थोड़ा सा कम हो गया, 20-30 या 25-50 के करीब। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम है, एक तो ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी, जहां आपने थेरेपी छोड़ी वहां पे फिर से क्वार्टर बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमें देखना पड़ेगा हमें कब तक देनी, और बेस्ट रिस्पॉन्स मैक्सिमम भी है, अगर बहुत अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा तो भी क्वार्टर 50% रिड्यूस होगा, उससे ज्यादा नहीं, तो क्वार्टर आपका हमेशा रहेगा। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन TSH लेवल, जैसे TSH जितना ज्यादा बड़ा होगा, आप उसको लिवोथायरोक्सिन देंगे तो उतना ज्यादा हमारे ग्वाइटर में रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन सपोज TSH पहले से ही नॉर्मल था या पहले से सप्रेस था, उस पर अगर हम और सप्रेस कर देंगे तो हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा उसका, स्पेशली व्हेन द डिस्क्रीट नोड्यूल विद परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रेजेंट। अगर डिफ्यूज क्वार्टर है उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर नोडुलैरिटी डेवलप हो गई है तो चांसेस कम है कि उसमें परमानेंट चेंजेस आए, चांसेस कम है कि वो परमानेंटली खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ नोड्यूल रहेगा उसके अंदर, नोड्यूल पूरा खत्म नहीं होगा। और दूसरे, लंबे टाइम तक अगर हम लीवोथायरोक्सिन सप्रेशन थेरेपी देते हैं तो बेसिकली वी आर हाइड्रोजेनिकली क्रिएटिंग फेज ऑफ सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म, हम हाइपरथायरॉयडिज्म को उसको क्रिएट कर रहे हैं, विच एज आई सेड इज वेरी डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन हार्ट एंड बोन्स, तो वी हैव टू बी वेरी जुडिशियस।
अबाउट कि हम किसको दे रहे हैं। उस पेशेंट में ऐसा तो नहीं ऑलरेडी हाई रिस्क फैक्टर्स है, तो नॉट ऑल पेशेंट, सारे पेशेंट में हम नहीं दे सकते। किसी का हार्ट ऑलरेडी वीक है, किसी की बोन्स ऑलरेडी वीक है, उनमें दिस थेरेपी वी कैन नॉट गिव, अदरवाइज उसका कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाएगा। तब दूसरा आता है हमारा, फिर इसको रिकमेंड किस में करेंगे, हल्का माइल्ड टू मॉडरेट साइज है, क्वाइटर डिफ्यूज क्वाइटर है और टीएसएच बढ़ा हुआ है, इसमें आप आराम से दे सकते हैं इसको, है ना, तो इसमें कोई हार्म नहीं। लेकिन अगर किसी की नोडुलरिटी डेवलप होगी, किसी का टीएसएच ऑलरेडी सप्रेस्ड है, किसी को कंप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, मेलिग्नेंसी का डाउट हो रहा है, उसमें इट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड। अब आती है रेडिएटिव आयोडीन अब्लेशन, है ना, ये भी हम बहुत सुनते हैं। इसका रैशनल क्या है, इसका रैशनल है कि हम बिना सर्जरी के दवाइयों के माध्यम से थायराइड को की टिश्यू को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देता है थायराइड की टिश्यूज को। अब थायराइड की टिश्यू को जब ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो श्रिंक कर जाएगा टिश्यू, जिससे कि गोइटर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब इसका ऑनसेट ग्रेजुअल होगा, एकदम से नहीं होगा, आप देंगे कुछ हफ्तों का महीनों का टाइम लगेगा इसके लिए। जो इफेक्ट है डिपेंड करेगा थायराइड वॉल्यूम और आयोडीन अपटेक। थायराइड का वॉल्यूम कितना ज्यादा है उसी प्रपोर्शन में कम होगा। आयोडीन अपटेक, उसमें पता चला आयोडीन ही अगर कम नहीं, सपोज उसका टीएसएच सप्रेस्ड है, तो वो आयोडीन भी कम लेगा वो गोइटर, और आयोडीन कम लेगा तो उसमें जो रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम है वो भी कम होगा। तो इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, एक कम रेडिएशन एक्सपोजर करना, रेडिएशन एक्सपोजर से लाइफ लॉन्ग रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ रहा है पेशेंट का, इसलिए फीमेल में और चिल्ड्रन में तो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें नहीं दे सकते। अब रेडिएशन इंड्यूस थायरोइडाइटिस हो सकती है, उससे परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, इसलिए ये रिकमेंडेड होती है या तो ऑल्टरनेटिव टू सर्जरी इन पुअर रिस्क पेशेंट, मतलब जिसमें हम सर्जरी नहीं कर पा रहे उसमें आप इसको दे सकते हो पुअर रिस्क पेशेंट में। स्मॉल रिकरेंसेस फॉलोइंग सर्जरी, जैसे कि आपने सर्जरी की उसके बाद उसको दोबारा से रिकरेंस हुआ, आप उसको दोबारा ऑपरेट नहीं करना चाह रहे क्योंकि रीऑपरेटिव सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन रिस्क ज्यादा है, तो हम इसको रेडियो आयोडीन अब्लेशन को उस वक्त कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम के लिए। तो अब सर्जरी के बारे में हम बात करें, सर्जरी का रैशनल क्या है, इसका रैशनल है कि जितना भी विजिबल गोइटर है, जितना भी विजिबल थायराइड टिश्यू है, ये हम पूरा रिमूव कर दें, रिसेक्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल थायराइड टिश्यू, या तो हम पूरा निकालें या ऑलमोस्ट ऑल, जैसे नियर टोटल थायरोइडेक्टमी होती है, सब टोटल थायरोइडेक्टमी। इसका ऑनसेट रैपिड होगा, आज ऑपरेशन किया इमीडिएटली खत्म, थायराइड फिनिश। आपको क्या करना है, बस लाइफ लॉन्ग एक थायराइड की गोली देनी है और हाईली इफेक्टिव है। लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, ऑब्वियसली एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन होंगे, हीमरेज हो सकता है, लोकल स्ट्रक्चरल इंजरी हो सकती है, परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा पेशेंट को, आपको थायराइड की गोली देनी पड़ेगी, और नेक में एक स्कार आएगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होती है, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। एक तो मॉर्बिडिटी, अगर एक्सपर्ट हैंड्स है तो चाहे जितना बड़ा थायराइड ग्लैंड हो उसकी मॉर्बिडिटी मिनिमल होती है और बहुत ही रिवॉर्डिंग रिजल्ट होते हैं। दूसरा, वी गेट कंप्लीट पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, जिससे हम पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किसी नोड्यूल में कोई कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा था, जो बाकी जो इनिशियल थेरेपीज थी उसमें हम नहीं कर सकते थे। चांसेस ऑफ, अगर हम टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं तो चांसेस ऑफ रिकरेंसेस मिनिमल होते हैं, और वन टाइम ट्रीटमेंट, एक बार हो गया खत्म, उसमें मसला खत्म हो। इसमें इसको हम रिकमेंड करते हैं ऑलमोस्ट सारे पेशेंट में, जिसमें हमें लगता है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कंप्रेसिव सिम्टम्स है, उसमें तो डेफिनेटली हम उनको कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अब बात आती है जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और बहुत सारे फिजिशियन फोरम है, हम बार बार सुनते हैं, दैट इज कि हमें टोटल करना चाहिए कि सब टोटल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको थायरोइडेक्टमी की हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं उसको समराइज करूं तो जो सबसे पहले थायरोइडेक्टमी शुरू की थी डॉक्टर रॉबर्ट कॉकर है, जो कि फादर ऑफ थायराइड सर्जरी भी कहलाते हैं। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने उससे पहले थायराइड में बहुत मॉर्बिडिटी होती थी, अगर हम 10 मरीज ऑपरेट कर रहे हैं तो मान के चले 8 से 9 लोगों का डेथ हो जाएगा, तो बहुत ही हॉरिफाइड सर्जरी थी। तो डॉक्टर पॉकेट ने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन करके थायरोइडेक्टमी की, तो उसमें उन्होंने टोटल थायरोइडेक्टमी की। अब टोटल थायरोइडेक्टमी करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि मॉर्बिडिटी बहुत ड्रामेटिकली कम हो गई, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन बाद में पेशेंट को मिक्सडीमा हो गया, उसको मिक्सडीमा कोमा की वजह से कई पेशेंट में दिक्कत हुई। अब प्रॉब्लम ये होती कि उस वक्त थायरोक्सिन सप्लीमेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं थी, हमारे पास थायरोक्सिन का ड्रग नहीं था, तो लोगों को उन्हें लगा कि टोटल थायरोइडेक्टमी करने से प्रॉब्लम है। उन्होंने फिर थोड़ा सा थायराइड छोड़ना शुरू कर दिया और सब टोटल थायरोइडेक्टमी करनी शुरू कर दी कि एक तो नर्व बची रहेगी, पैराथायराइड बची रहेंगी, और दूसरे
थोड़ा सा हार्मोन थायराइड निकालता रहेगा तो पेशेंट को मेक्सिडिनोकोमा नहीं होगा। लेकिन बाद में जब लंबे टाइम तो कई सालों तक टोटल थायराइडेक्टमी प्रचलन में नहीं थी। बाद में जब स्टडीज हुई तो देखा गया कि जो सब टोटल थायराइडेक्टमी की जाती है उसमें रिकरेंस का रिस्क बहुत ज्यादा है। मतलब ट्यूमर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, जो नोड्यूल्स बच हमने छोड़ दिए थे वो दोबारा से आउट ग्रो करने लगते हैं। और जब हम रीऑपरेटिव सर्जरी करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कई गुना ज्यादा होता है जब हम प्राइमरी सर्जरी करते हैं उससे। तो इसीलिए, और तब तक थायरोक्सिन का मेडिसिन मार्केट में आ गया था, इजाद हो गया था। तो अब हमारे पास बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो इसीलिए इसको वापस से रिवाइव किया गया, टोटल एक्स्ट्रा कैप्सुलर थायराइडेक्टमी को फिर से रिवाइव किया गया। और अब जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है ऑफ एनी थायराइडेक्टमी इज टोटल थायराइडेक्टमी। एज एन एंडोक्राइन सर्जन, प्लीज मेक अ नोट, इफ यू आर अ सर्जन और इफ यू आर फिजिशियन, always consider total thyroidectomy, extra capsular total thyroidectomy, because it is most safe surgical procedure. अब हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का इतना इशू नहीं है, पैराथायरॉइड का इतना इशू नहीं है, और जो परमानेंट हाइपोथायरॉइडिज्म डेवलप हो रही है, इट इज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय द थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। छोटी सी गोली आती है, सिर्फ खाली पेट लेनी पड़ती है। तो अब अगर हम इस पेपर को कोट करें, a growing body of evidence supports the assertion that in experienced endocrine surgeons' hands, the absolute risk of an adverse outcome following total thyroidectomy is no different than that of subtotal thyroidectomy. Furthermore, the risk of recurrence is zero following thyroidectomy. And इसमें रिकरेंस जीरो है, सब टोटल में रिकरेंस काफी हाई होता है। सो मेक इट अ पॉइंट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, ऑलवेज कंसिडर टोटल थायराइडेक्टमी in any patients in whom you are considering removal of total thyroid. Never leave any thyroid tissue in that area, because that thyroid tissue you can very well compensate with replacement therapy with small गोली जो आप मार्केट से लेते हो। लेकिन अगर वहां पे रिकरेंस हो गया, वहां पे रीऑपरेट करना इज मोर रिस्की एंड मोर चैलेंजिंग। सो फ्रेंड्स, द टेक होम मैसेज इज, वॉइटर्स कॉमन होते हैं, स्पोरेटिक एरियाज में भी बहुत कॉमन मिलते हैं। diffuse goiters है, they may revert back to normal, but once the nodules are developed, they never revert back to normal. So there is a gradual progression over time. The chances of recurrence, the chances of malignancy is high in long term. Even if benign, may lead to compression of aerodigestive tract or may extend. अगर benign भी है तब भी उसको, एक तो मेलिग्नेंसी का रिस्क हाई है जैसे हमने डिस्कस किया, और अगर बिनाइन भी है तभी भी, बिकॉज उसकी ग्रोथ होती जा रही है, इट में लीड टू कंप्रेशन ऑफ एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मे एक्सटेंड रेट्रोस्टेनली, तो वो आपका सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन का चैलेंजेस बढ़ा देगा। इसलिए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखो अगर इफ यू आर नॉट ऑपरेटिंग, और whenever you think of providing a definitive treatment, surgery is the mainstay of treatment. Okay, so with this, friend, thank you very much for your patient hearing. So now I request, now this meeting is all open for the discussion, and I'm now stop sharing my screen. So now I'm allowing all the participants to unmute themselves and they can ask the question. Thank you, Dr. Sudhi, for excellent presentation, and I must congratulate you for the fantastic talk about the regarding the overview of anatomy, pathophysiology. One thing very well described is the main pathway for multinodal goiter is well taken regarding this, who requires definitely. First of all, I would like to thank you for giving the opportunity, and it's very interesting to learn various new things about the multinodal goiter. And the talk, Dr. Cheney, is excellent, and by you was also very. This regarding multinodal goiter, one thing is the chronic low-grade stimulation, intermittent stimulation for thyroid hyperplasia is the pathophysiological basis for. We are living in this very endemic zone for iodine deficiency. Universal iodization of the salt. We are now seeing various huge goiter, but more of the ultrasound detected thyroid nodule is very common. Still in the sub-Himalayan belt, at least 10 gram of salt is required. 150 is normal, and SDPGI team assessed the Gonda recently by and
ultrasound and urinary iodine level. And I think this study was published by USAG, and moderate amount of iodine deficiency there in this area. In south, we are seeing more of iodine toxicity, more cases of thyroiditis is there, and this thyroiditis also lead to multinodal goiter formation in the long term. And this 5% chances of malignancy is there, and about 10 to 15% chances of toxic multinodal goiter is there in this. I would like to now introduce Dr. Shivendu Bhardwaj has joined. So, Dr. Shivendu, are you comfortable now? Shivendu Bhardwaj is one of our moderators. Yeah, may I request? Hello, ma'am. Hi. It was a Good to see you. excellent presentation, ma'am. And the only one thing I want to add about multinodular goiter, although you have already emphasized that the natural history, if we say for multinodular goiter, that is patient presenting with either subclinical or overt hyperthyroidism. That is one thing that is we commonly see in SGPGI rather than malignancy. The most common natural history for these patients is presenting as overt and subclinical. And a lot of times people start them on antithyroid drugs, carbimazole and all, and they continue on that for years. And so we should always keep in mind that that is not a definitive treatment for multinodular goiter. That is for Graves, definitely after a period of time it will. But for multinodular goiter, the definitive treatment has to be radioiodine therapy. So in these patients, we should not continue carbimazole for long. Once they have reached a euthyroid state, then we should definitely refer them for radioiodine therapy or surgery if required, depending on the size of the Okay, so goiter. Generally, here I would like to regarding this radioiodine therapy and thyroid surgery, है ना, ये एक बहुत ही important point है. अच्छा, so this very valid point you have raised, and the thing is कि if I am sharing my experience with you, first of all, this occurrence of follicular thyroid cancer, we have seen huge proportion. मतलब we have a huge exposure of finding follicular thyroid cancer in long-standing multinodular goiters, and they have a typical history कि एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगा या कुछ कुछ है. So we are always like it is in our reflexes now कि अगर किसी पेशेंट ने कहा कि वो 40 साल से था, 30 साल से था और अब तेजी से बढ़ रहा, हमारे कान एकदम खड़े होते थे because we are tuned to managing such cases. And if I am not wrong, Deepen can also add on to this. एंड दूसरी चीज ये तो फॉलिकुलर थायराइड मैलिग्नेंसी रेट हमने बहुत हाई देखा है ऐसे पेशेंट्स में. ऑफ कोर्स हाइपरथायराइडिज्म इज मोर कॉमन कंपेयर्ड टू मैलिग्नेंसी बिकॉज आई थिंक दिस म्यूटाजेनिक प्रोसेस है और ये ज्यादा सीवियर होता है इन मैलिग्नेंसी. देयरफॉर हाइपरथायराइडिज्म में जो ऑटोनॉमस हाइपर फंक्शनिंग होती है ये जल्दी डेवलप हो जाती है और ज्यादा डेवलप होती है ज्यादा प्रोपोर्शन में. लेकिन मैलिग्नेंसी का एक अच्छा खासा हमने रेट देखा है. मे बी विद आयोडिनाइजेशन ये रेट थोड़ा सा कम हो जाए, आई एम नॉट श्योर. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन है और सर्जरी वर्सेस सर्जरी, ये जो एक इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस होती है जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया या सॉलिटरी, इस पे हमारा एक सेपरेट सेक्शन रहेगा मे बी बहुत जल्दी, अनदर फ्यू मंथ्स हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे. और इसमें भी तो इसमें क्या होता है, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी ऑलवेज नीड टू एम्फसाइज कि सपोज इफ देयर इज अ नोडुलर गोइटर फॉर्मेशन, सो आवर थिंग इज व्हाट हमारा जो एक्सपीरियंस है कि अगर नोड्यूल डेवलपमेंट होते तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है. पहले नंबर ये कि कहीं उस नोड्यूल में कैंसर तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हो जो लेटर ऑन हमें परेशान करे. दूसरी चीज हिस्टोपैथोलॉजी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज ये है कि नोड्यूल एक बार डेवलप हो गया इट इज वेरी अनलाइकली कि वो रिग्रेस करे. अगर कंप्रेसिव सिम्टम्स उसको डेवलप हो गए हैं, रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन डेवलप हो गया, तो दिस रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी मे नॉट बी हेल्पफुल. अर्ली डिजीज है, मॉडरेट डिजीज, एंड दिस इज देयर इन द टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. सो बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग debate that we can have someday in one of our forums, in our upcoming forums. हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. Anything Deepen want to add? Yeah, especially this regarding radioiodine therapy for multinodular goiter. One thing I just want to add, based on this thyroid scan, one must perform ultrasound guided
or this scan guided FNAC from the cold nodule before directly undergoing for radioiodine therapy, because chances of malignancy is there in cold nodule, and we know very well in toxic multinodal goiter also there are a lot of hyperfunctioning hypofunctioning area is there, and if the size of goiter is small and there are benign area on FNAC in cold nodule, then one may go for radioiodine therapy in this category also, provided there is no compressive symptoms. Yeah. One thing we missed, I think we missed, but it would बहुत ही अच्छा point दीपेन ने मिस point raise किया, that is the thyroid scan. So friends, please take this as a point. Whenever a patient presents to you with any thyroid pathology, so our first investigation is the thyroid function test. क्योंकि जैसे ही thyroid function test आता है, उससे हम determine करते हैं कि patient high TSH raised है कि नॉर्मल है कि सप्रेस्ड है. सपोज अगर टीएसएच सप्रेस्ड मिलता है, मतलब पेशेंट हाइपर थायराइड फेज में है और पेशेंट पहले से कोई थेरेपी नहीं ले रहा है, तो मतलब ये उसका नॉर्मल टीएसएच सप्रेशन है. ऐसे केसेस में आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज थायराइड स्कैन, जो हमें करानी चाहिए ये देखने के लिए कि क्या ये एक टॉक्सिक एडिनोमा है, कोई ग्रेव्स डिजीज के फीचर है, या एक टॉक्सिक एडिनोमा है, या टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर है. तो ये या ये थायरोइडाइटिस की वजह से ये टीएसएच सप्रेस्ड है, तो उस केस में थायराइड में अपटेक कम होगा. थायरोइडाइटिस पे और हाइपर थायरोइडिज्म पे हमारा एक सेपरेट फोरम होगा इन कमिंग मंथ्स, तो उस पर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. व्हाट आई एम फीलिंग, जो अभी हमने मिस किया, कि एक हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन हमारे साथ होना चाहिए था, जो कि नेक्स्ट फोरम में हम उन्हें भी अपने साथ रखेंगे ताकि हम उनके भी पॉइंट्स जान पाए. So ये चीज है. So anyone wants to add on anything or want to ask anything from our forum can directly ask us. They can unmute themselves और वो हमसे बात कर सकते हैं. Okay, Shivendu. By the time if someone is asking, there is a very important point that as an endocrine surgeon I want to understand. From Yes, ma'am. What is your view? Like, suppose a patient comes to you and the patient is a candidate for surgery. So Yes, ma'am. what do you prefer? Do you prefer total thyroidectomy or you ask for subtotal thyroidectomy from your surgical counterpart? Ma'am, in SGPGI, so like when we used to refer the patients to the endosurgery department, so they to basically preferred total thyroidectomy over subtotal thyroidectomy. What I have seen in my 3 years of residency there, so the preferred option there was total thyroidectomy only. And as an endocrinologist, we just had the confidence in our endosurgery department. So whatever they decided, we used to go along with that only. Okay, so what is your experience in the your endocrinology forum? The reason why I'm asking is because in few of the thyroid society forums which I once visited, so or in any other physician forum that I visited, most of the physicians were always in favor of subtotal thyroidectomy. I'm not sure their reason for this for this favor. So just want to understand from you as an endocrinologist, what is your personal preference and why? Then the only thing that people think is the complication rate. That the complication rate will be less if we undergo if the patient undergoes subtotal thyroidectomy. But for thyroid surgery, I think the most important thing is the experience of the surgeon and the experience of the center regarding the complications. And the other thing that the people fear is the thyroid replacement, that if we go for subtotal thyroidectomy, then patient might not require thyroid replacement. Although we have seen a number of patients in SGPGI, even if the patient had undergone subtotal thyroidectomy, they ultimately required thyroid replacement. So it was not like if if the patient is undergoing subtotal, they won't require thyroid replacement. The risk of patient having hypopara or recurrent palsy, I think that will depends more on the experience of the surgeon and the experience of the center. Very, very valid points that you have put in, Dr. Shivin. अच्छा, तो फ्रेंड्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी ना. आई रिक्वेस्ट यू कि बिल्कुल आप इसको सीख के जाए. जैसा मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जब मैंने थायराइडेक्टमी की हिस्ट्री बताई आपको कि कैसे शुरू हुआ, क्या ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए जाए.
द थिंग इज कि द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन विल डिपेंड अपॉन कि आपका थायराइड सर्जन कौन है। तो जो जितना एक्सपीरियंस सर्जन होगा, जिसकी ट्रेनिंग जिसमें होगी, सो यूजली द कॉम्प्लिकेशन रेट आर मच लेस in experienced hands. Please make it a point. So this permanent hypoparathyroidism हुआ या permanent recurrent laryngeal nerve palsy, इसका जो रेट है in experienced hand is less than 1%. लेस देन 1%, मैक्सिमम हुआ तो 5 to 1 to 5% हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। दूसरा चीज है रिप्लेसमेंट। सो एज ऑलरेडी आई सेड कि नाउ रिप्लेसमेंट इज नॉट एन इशू बिकॉज वी हैव वेरी वेरी गुड ड्रग्स, जो कि छोटी सी गोली होती है, सुबह खाली पेट खानी होती है, एंड वी आर ऑल डन। तो ये सब टोटल की बात आई थी, तब आई थी जबकि थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं थी। अब सब टोटल की प्रॉब्लम क्या है? सब टोटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकरेंस। क्योंकि जो हमारे अगर एचजीपीजीआई अकेले की ही हम स्टडीज उठा के देखें, नॉट ओनली एचजीपीजीआई, these studies are done worldwide, and now all the thyroid surgeons, those surgeons who are exclusively doing thyroid, they are not doing subtotal at all, they all are doing total thyroidectomy। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले टोटल थायराइडेक्टमी में रिकरेंस रेट प्रैक्टिकली 0 होता है। तो एक बार अगर आपने पूरा थायराइड निकाल लिया तो यू नो कि आपको रिकरेंस की प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेसमेंट की हमको टेंशन नहीं, क्योंकि नाउ वी हैव थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपने कई लोगों को देखा हो जिनको कोई थायराइड का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन वो थायराइड की गोली खाते हैं। सेम गोली दैट पेशेंट हैज टू टेक, एंड विथ 0 रिस्क ऑफ रिकरेंस। रिकरेंस का कोई रिस्क नहीं है। दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि सपोज इफ हमारी पैथोलॉजी में कैंसर आ गया, उन्होंने कहा फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, इट इज अ डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू डू रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी और अब्लेशन। अगर हमने वहां पे रेसिडुअल थायराइड टिश्यू छोड़ दिया तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देन वी अगेन हैव टू टेक द पेशेंट फॉर सर्जरी, रिमूव द रिमेनिंग थायराइड, नहीं तो हमें आयोडीन, रेडियो आयोडीन की डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉडी में रेडियो आयोडीन का एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा। हम थायरोग्लोबुलिन को मेजर करते हैं पोस्ट सर्जरी इन केसेस ऑफ मैलिग्नेंसी। तो क्योंकि हमने थायराइड टिश्यू छोड़ा है तो थायरोग्लोबुलिन को हम प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि हमने ऑलरेडी जानबूझ के थोड़ा सा थायराइड टिश्यू छोड़ा है। तो हमें प्रैक्टिकली 0 होना चाहिए या अनडिटेक्टेबल होना चाहिए थायरोग्लोबुलिन। अब हमें एक बड़े अमाउंट में मिलेगा। सो कैन वी फॉलो दैट पेशेंट? नो, वी कैन नॉट फॉलो अ पेशेंट विद डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर इफ वी लीव अ थायराइड टिश्यू बिहाइंड बॉडी में। दूसरे, अगर रिकरेंस हो गया, सपोज दोबारा से उसको गांठें बढ़ने लगी, तो फिर हमारे पास क्या? अगर हम उसे रीऑपरेट करेंगे, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो प्राइमरी सर्जरी में के मुकाबले मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाएगा, 5 to 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। इसलिए इट इज ऑलवेज गुड दैट वी कंटेम्पलेट द कंप्लीट सर्जरी इन द प्राइमरी सेटिंग ओनली। हम पहली सेटिंग में ही उसको प्राइमरली उसको रिमूव करें, ताकि हमें दोबारा से नेक को री एंटर ना करें। हमें दोबारा चाहे मैलिग्नेंसी हो या बिनाइन हो, रिकरेंस का कोई रिस्क नहीं है। सो दिस इज द टेक होम मैसेज। प्लीज avoid doing subtotal thyroidectomy. If you are a surgeon, please avoid doing subtotal. If you are a physician or someone who refers the patient of goiter for surgery, please ask your surgeon not to do subtotal thyroidectomy. Always ask them to do a total thyroidectomy, and these are the reasons. So, any comment on this? Yes, Deependra. Just one thing I would like just add. This discussion is all about multinodular goiter. Any time we find a solitary nodule and it is totally benign, then hemithyroidectomy is the sufficient surgery. And because other side we are not going to explore, and reoperative surgery on that opposite side is very safe in our hand. Yeah. Either the minimum surgery in thyroid is hemithyroidectomy, and if multinodular goiter or malignancy more than 4 centimeter, total thyroidectomy must be done. Yeah, thank you very much, Deepen, for putting this point. तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ, तो अगर आप जिस टाइप की सर्जरी कर रहे हैं, थायराइड ट्रैकिया के जिस साइड की सर्जरी कर रहे हैं, वो साइड की सर्जरी कर दो, वहां पे दोबारा ना जाना पड़े। वहां पे आप इशू, आप दूसरी साइड को जब मत करो। सपोज वहां नॉर्मल है, आप पेशेंट से डिस्कस कर सकते हो, और वो हेमी की कंसेंट देता है, हेमी कीजिए उसमें, वहां उस एरिया को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि हमें एक वर्जिन प्लेन चाहिए होता है एज अ सर्जन। वर्जिन प्लेन होने से वहां की एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी, स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो जाएगा, और हमारे लिए
पैथोलॉजी को रिमूव करके और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को सेव करना इजी हो जाएगा. Although there is risk of long-term 30% hypothyroidism after hemithyroidectomy, but it's acceptable. Only 30% require thyroxine supplementation after hemithyroidectomy. Yeah. So, Dr. Shivendu, Dr. Chani, you want to add something? Very interesting talk. Yeah, thank you. Anyone from our participants? I am so glad that all the participants remained with us throughout the presentation. And I request कि आप लोगों को कोई भी आपने पेशेंट देखा हो या कोई चीज ऐसी हो जो आप हमसे क्लियर करना चाहते हैं, we all are here. It is a very close group discussion. We can openly discuss with each other. You can now open your you can unmute yourself or you can write it in the chat box and we'll ask question on your behalf. But please don't go without getting any of your question unanswered. Okay. I request Dr. Shivendu, any point from your side? Chani, you want to add something? Ma'am, I wanted to ask as a from non-surgical branch, what is the difference between lobectomy and hemithyroidectomy? Like for, as I said, less than 4 centimeters. If it is a PTC, for instance, so lobectomy or hemithyroidectomy, which is there any difference? Dipen, would you like to answer this? Yeah, very important point. Lobectomy, hemithyroidectomy means we have to remove whole one side of the lobe along with complete isthmus and this pyramidal lobe and any thyrothymic thyroid rest on that side. We have to clear everything, and only thing we just left behind is one lobe only. The next time we were going to do only lobectomy in that patient. So, sir, in less than 4 centimeters, hemithyroidectomy is preferred or lobectomy, which is preferred? If clear-cut malignant PTC, less than 4 centimeter, there are a lot of paper. If there is no extrathyroidal extension on ultrasound, we are seeing quite intrathyroidal nodule PTC, and we can very well observe the patient on ultrasound and TG very well. And if it is follicular, definitely in follicular, we suggest total thyroidectomy. But PTC, low grade PTC, definitely we can observe up to 4 centimeter. I think some people consider 2 centimeter the criteria, but because this PTC is very slow growing tumor, we can very well observe it. Thank you, sir. That's PTC, FTC, these are all very different categories. And thank you, Deepan, for your valuable feedback. And we'll certainly keep, though हमारा एक PTC पे प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, और आई रिक्वेस्ट हमारी जो भी मीटिंग्स होती है, दिस इज कॉमन इंफॉर्मेशन, ऑल आर मीटिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड दे आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर आवर फ्यूचर आर्काइव. लाइक आज आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप आराम से जाके वहां पे जाके उसको देख सकते हैं, अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा के आप जल्दी से उसको देख सकते हैं ताकि आपका नॉलेज भी इनहेंस हो जाए. और सो ऑल आवर मीटिंग्स आर आर्काइव. आप बहुत, तो ये मीटिंग भी हमारी आर्काइव होगी, इसका लिंक बहुत ही जल्दी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे. हमारे ग्रुप से आप बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं और हर महीने हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लिनिकल वैल्यू का टॉपिक आपके सामने लाएंगे. Shivendu, you want to add something before we conclude our meeting? Hello, ma'am. Yes, Shivendu. Ma'am. Nothing, ma'am. It was a wonderful discussion. For us, though, we mostly come in play as endocrinologist when patient has thyrotoxicosis. Our role is mostly in when the patient has thyrotoxicosis and to manage the thyrotoxic patients. And in other. Thank you, Shivendu. And through these programs, actually, as you said, you are limited towards your role. We all are limited towards our role. But through this program, what we do, we exchange our knowledge so that you also learn. Because there is no forum where the surgeon and physician can come together. In this forum, we encourage the surgeon, physician, everyone to come together so that we can know each other's point of view and can upgrade the way we manage the patient. हम जैसे patient को manage करते हैं. So when I talk to a physician, I know their perspective. They also know our perspective, and this is how we grow. इसी तरह से हम grow करते हैं.
तो हमारा पूरा टाइम कैसे निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला, एंड आई एम सो ग्लैड आई लर्न अ लॉट from this meeting, and I hope the same happened for you as well. And the coming months Definitely. are full of excitement. Next month we have our breast meeting. Soon I will be sharing the details about, and we will be covering now. We will be covering the basic topics so that हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे. हम basic topics को cover करेंगे, imaging हुआ, pathology हुआ, so that no we know how to read a particular image. उसको रीड करने का सीक्वेंस क्या होता है. सो पॉसिबली next month we will be taking mammography, the basics of mammography, and in thyroid we will be covering about the various functional disorders like hypothyroidism, hyperthyroidism, उनका मैनेजमेंट हम ये सीखने की कोशिश करेंगे. तो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट आप सब हमारे साथ इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ बने रहिए, हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए. हमारे ग्रुप पे वीकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स एक्टिविटीज होती हैं. आई रिक्वेस्ट आप सब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए. उसमें ग्रुप एडमिन राइट्स की जरूरत है. आपको कुछ नहीं करना है, आप बस मुझे आपको नंबर्स हमने उस ग्रुप पे शेयर किए हैं. आपको बस ग्रुप एडमिन जो मेन ग्रुप एडमिन है 9536157789 जो कि मैं ग्रुप पे डालूंगी, आपको बस अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड यू विल बी गिवन द ग्रुप एडमिन राइट्स सो दैट वी हैव अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इन आवर ग्रुप. हमारे साथ बने रहिए. इसी के साथ मैं Very well discussed, Dr. Sudhi. Nice thank you. discussion. I'm so glad to my moderator, Dr. Mhm. Shivendu, Dr. Chani, my dear friend, Dr. Deepen, you are my dear friend, Deepen, and thank you for joining us. I learned a lot from you, as always. And Thank with you. Good conclude, night. I request everyone they can also leave the meeting, and we will be interacting about any endocrine and breast related problem in our Friendos group. So please keep connected with us in our group. Thank you very much.